ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول بہاروں کے سنگ سنگ جس کی رائٹر ہیں اقرا صغیر احمد، اس کی یہ 6ٹھی ایپیسوڈ ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو کل میں نے ماشاءاللہ سے 2 ایپیسوڈ دیے ہیں، تو آج میں آپ لوگوں کو یہ 6ٹھی ایپیسوڈ دے رہی ہوں، اور یہ تھوڑی سی شارٹ ہوگی کیونکہ آپ لوگ جانتے ہو کہ میں اس وقت یونیورسٹی میں ہوں اور مجھے تھوڑا سا ٹائم تو دینا پڑے گا نا اسٹڈیز کو بھی، مجبوری ہے۔ ویسے میں دینا نہیں چاہتی، میں بالکل بھی نہیں دینا چاہتی یار، کون اسٹڈی کرنا پسند کرتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بھی میرے ساتھ ایگری نہیں کرے گا۔ نہیں، کچھ پڑھاکو لوگ ہوں گے بھائی، میں ان سے بات بالکل بھی نہیں کر رہی، میں صرف اپنے جیسے لوگوں سے بات کر رہی ہوں جو پڑھائی کو تھوڑا سا سائڈ پر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ویسے مجھے امید کم ہی ہے کہ مجھے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا جو پڑھنے والے بچے ہیں، لیکن نہیں، ایسا نہیں کہہ رہی کہ نالائق ہوتے، بھائی اتنی نالائق میں بھی نہیں ہوں، جب پڑھنا ہوتا ہے پڑھ لیتی ہوں، لیکن ہماری پریورٹی میں پڑھائی نہیں ہوتی نا، تو اسی لیے میں یہ بات کہہ رہی ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بس تھوڑے سے دن ہیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے ہونا ہے بھائی، ہمارا ساتھ تو دائمی ہے نا، ہم لوگوں نے تو انشاءاللہ ہم لوگوں کا ساتھ تو رہے گا، میں آپ لوگوں کو ناولز پڑھ کر سناتی ہی رہوں گی، لیکن ابھی فی الحال ٹائم کے لیے تو میرے پاس تھوڑا کم ٹائم ہے، مجھے اپنی اسٹڈیز کو تھوڑا بہت ٹائم دینا ہے یار۔ ایک تو میں بہت ٹینشن میں ہوں، مجھے ماڈل بنانا ہے B.Ed کے لیے، اور اس کی میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی کام کے لیے میں آگے بڑھی تھی، اور اس میں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں کر پاؤں گی کہ نہیں کر پاؤں گی، تو اس کو اس سیٹرڈے جا کر مطلب ایک طرح سے دکھانا تھا یا بتانا تھا، تو کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، لٹرلی کچھ نہیں کیا، اور میرے سے جایا ہی نہیں جا رہا شہر کہ میں وہاں پر جاؤں اور کچھ کام کر لوں اس کا، کیونکہ میں اکیلی تو نہیں جا سکتی نا، پھر کوئی ساتھ بھی نہیں جا رہا، تو بہت سارے ایشوز ہیں جو میں ابھی اس وقت نہیں بتا سکتی، تو پھر مطلب میں بتا سکتی ہوں، مجھے ایشو نہیں ہے بتانے میں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ بور ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ لوگوں کو مزید بور نہیں کرتی ان شارٹ، اسی لیے میں آپ لوگوں کو شارٹ ایپیسوڈ دیا، اور اس کے علاوہ میں نے من محرم کی بھی آپ لوگوں کو شارٹ ہی ایپیسوڈ دی ہے، اسی لیے تاکہ آپ لوگوں کا وہ تھوڑا سا ہو جائے، کمپنسیٹ ہو جائے، اور اگر مجھے ٹائم ملا تو میں انشاءاللہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ کون سا تھا، رقص محبت، اس کی بھی میں ریکارڈ کر لوں گی، ٹھیک ہے؟ اور اگر مجھے ویسے ٹائم اب کہاں ملتا ہے اتنی، میں کتنا مرضی کر لوں، جتنا مرضی کر لوں، ایک گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے نا میرا، تو وہ پورا ٹائم دینا پڑتا ہے، تو پھر اسی لیے آپ لوگوں کو تھوڑی شارٹ ایپیسوڈ دے رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ناراض مت ہوئیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ڈے میں کوشش کروں گی تھوڑی لانگ ایپیسوڈ دوں، ٹھیک ہے؟ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو۔ شاہ فرماؤ کنیز، ہم تمہاری فریاد سننے کے لیے بے قرار ہیں، شاہ رخ شاہانہ انداز میں اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ اس کے شاہی انداز پر طوبہ خول کر رہ گئی تھی، مگر مصلحتاً وہ مسکرا کر خوش آمدی لہجے میں بولی، میرے اچھے بھائیوں نا، چھتر پار لے چلو، دیکھو نا لائبہ بھی 2 دن سے آئی، گھر میں بور ہو رہی ہے، کیا ہم اسے بور کرنے کے لیے لائے ہیں؟ نہیں، تم میری فکر مت کرو، میں کوئی بور نہیں ہو رہی۔ کاؤچ پر بیٹھی نیوز پیپر دیکھتی لائبہ اطمینان سے بولی، تمہارا کیا ہے، تم تو ہو ہی آدم بیزار، مگر میں تمہیں اس طرح نہیں رہنے دوں گی۔ طوبہ اسے گھورتے ہوئے بولے، تمہیں اپنا یہ منحوس سایہ لائبہ پر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یہ بھی تمہاری طرح ہر وقت گھومنے پھرنے کے چکر میں رہے گی۔ شاہ رخ لائبہ کی طرف اشارہ کر کے بولا، تم سیدھے طریقے سے چلتے ہو یا ابھی ڈیڈی کو بتاؤں؟ تم ہر وقت دھمکیاں کیوں دیتی رہتی ہو؟ شوفر کو لے کر چل جاؤ، مجھ سے اگر لائبہ کہے گی تو میں چلوں گا، ورنہ چلو لائبہ تیار ہو جا، اب نہ نہیں چلے گی تمہاری۔ طوبہ اس کے ہاتھ سے اخبار چھین کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولی۔ چھتر پارک، شکر پوڑیاں اور فیصل مسجد کی زیارت کر کے وہ تینوں رات تک لوٹے تھے۔ انکل اسٹڈی روم میں تھے، آنٹی اور ماما ان کا کھانے پر انتظار کر رہی تھی، مگر انہوں نے وہاں چاٹ، آئس کریم اور برگرز اتنے کھا لیے تھے کہ اب کھانے کی گنجائش بالکل نہیں تھی۔ وہ دونوں معذرت کر کے اپنے مشترکہ بیڈ روم میں آ گئی تھیں، جبکہ شاہ رخ اپنے کسی دوست سے ملنے چلا گیا تھا، جس کی کالز اس کی غیر موجودگی میں کہیں باہر آ چکی تھی۔ طوبہ نے ڈریس تبدیل کیا اور اسے بھی سونے کا مشورہ دے کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ لائبہ نے نہا کر کپڑے بدلے اور نم بال بامشکل باندھ کر وضو کیا۔ وہ باتھ روم سے کمرے میں آئی تو طوبہ بے خبر سو رہی تھی۔ لائبہ نے نماز کی چادر اوڑھتے ہوئے اس کی چادر درست کی، نیند اسے بھی سخت آ رہی تھی، سارے دن گھومنے پھرنے کی وجہ سے تھکن اور نیند سے برا حال تھا، مگر اسے نیند سے زیادہ نماز پیاری تھی۔
नींद के लिए नमाज छोड़ देने का तसव्वुर वो कभी कर ही नहीं सकती थी। चाहे नमाज बिछाए, वो खुशू खसूस के साथ नमाज पढ़ रही थी। नमाज पढ़ने के बाद उसने सूरह यासीन, सूरह मुल्क और दुआए अकाशिया पढ़ी और इत्मीनान से चादर ओढ़कर तौबा के बराबर ही लेट गई। कुछ लम्हों बाद वो भी गहरी नींद में डूब गई थी। सोना तो वैसे भी उसकी वाहिद दिलचस्पी थी। जामिया की छुट्टियों में कुकिंग और मुताले के बाद लंबी तान कर सोना उसकी पसंदीदा हॉबी थी। अभी उसे सोए चंद घंटे ही गुजरे थे कि उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे सरगोशी में पुकार रहा है। लाइबा सिस्टर, ए सिस्टर उठो। उसने नींद भरी आंखों से उसे देखा। यार बात सुनो, एक इमरजेंसी आन पड़ी है, प्लीज़ अब आंखें नहीं बंद करना। उसने गुनूदगी में सरहाने खड़े शाहरुख को देखा जो कुछ कहता हुआ हाथ जोड़ रहा था। वो चंद लम्हे सोए हुए एहसास के साथ लाशऊरी अंदाज में उसकी तरफ देखती रही। दूसरे लम्हे शऊर के बेदार होते वो झटके से बौखला कर उठकर बैठी थी। क्या हुआ शाह? उसने रात के 1:30 बजाते वॉल क्लॉक की तरफ देखते हुए घबराए हुए लहजे में कहा। कुछ नहीं हुआ, तुम परेशान मत हो। शाहरुख उसकी शक्ल देखकर अपनाइत भरे अंदाज में उसके सर पर हाथ रखकर नरमी से बोला, दरअसल मुझे भूख लग रही है। फ्रीज़र में सालन तो है मगर रोटी नहीं है, तुम ज़रा रोटी पका दो, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये तौबा तो नामालूम किससे शर्त लगा कर सोई है, इतनी आवाज़ें देने के बावजूद ऐसे ही बेखबर सो रही है। तुम्हें तकलीफ़ तो होगी मगर मुझे भी भूख। कोई बात नहीं, मैं रोटी पका देती हूँ, आटा फ्रीज़र में गुंदा हुआ रखा है। वो शाहरुख को शर्मिंदा देखकर मुस्कुराती हुई खलूस से बोली और दुपट्टा दुरुस्त करती बेड से उतर आई। सदा जियो ना ख़त्म होने वाली मुसरतों के साथ वो उसे बुजुर्गों की तरह दुआएं देता हुआ उसके साथ कमरे से निकल आया था। लॉबी, कॉरिडोर्स वगैरह में नाइट बल्ब रोशन थे, हर सू सन्नाटे और सुकून का राज था। लाइबा ने कॉरिडोर में लगे बेसन में हाथ धोकर कुली की और दुपट्टे से चेहरा साफ करती उसके साथ दबे कदमों से चलती हुई किचन तक आ गई। किचन में मरकरी लाइट जलने की वजह से रोशनी फैली हुई थी। उसने किचन में एक कदम रखा और फ्रीज़र से पानी निकालते शख्स को देखकर शदीद हैरानी से गूंग हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वो पानी का भरा गिलास लेकर उसके नज़दीक आकर बहुत दिल नशीन लहजे में बोला तो लाइबा होश की दुनिया में आई। उसकी ब्राउन चमकती हुई आंखें बहुत वारफ्तगी से उसके सराइपे का जायज़ा ले रही थी। इंतहा की अपनायत और वालहानापन था इन आंखों में कि लाइबा की निगाहें झुक गई और दिल पहले से तेज़ धड़कने लगा। उसने बेख्तियार शाह का हाथ पकड़ लिया था। डरते नहीं सिस्टर, यह इंसान है, कोई भूत थोड़ी है जो तुम यूं खौफजदा हो गई हो। चेहरा दूर करो यार, मेरी बहन डर रही है। शाह जो उसामा की आंखों से चमकते जज्बों को कुछ पहचान गया था, उसे मुसलसल लाइबा को देखते हुए पाकर खूबसूरत तंज के साथ बोला, देख कर तो ये शायद तुम्हें डर गई थी, मुझे देखकर ये यकीन कर रही है कि वाकई ये इंसानों की दुनिया में है। उसामा मुस्कुराता हुआ बोला तो शाहरुख बेख्तियार हंस पड़ा। मैं अब इतना भी बदसूरत नहीं हूँ, लाखों लड़कियों का आइडियल हूँ। इन लाखों लड़कियों ने तुम्हें बगैर मेकअप के नहीं देखा होगा। उसामा बरजस्ता बोला। ये आपका मूड एकदम खुशगवार कैसे हो गया? हालांकि कुछ देर पहले काफ़ी बरहम थे मुझ पर। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी होती हैं, फजूल गपशप में इतना टाइम बर्बाद किया, दूसरे होटल से खाना ना खाने पर एतराज़ कर रहे थे। इन फजूल हरकतों पर मैं कह के तो लगाने से रहा। तुम कह के लगा भी तो नहीं सकते क्योंकि तुम इस मामले में बहुत कंजूस वाक़या हुए। दोस्तों के साथ इतने अरसे बाद मिलते हैं तो बातों में टाइम कहाँ याद रहता है। और रहा होटल के खाने पर एतराज़, तो मुझसे वो फीके सालन कतई नहीं खा जाते। चटपटे खाने का आदी हूँ। शाहरुख ने तवील वजाहत की। लाइबा उन दोनों की गुफ्तगू सुनते हुए आटे के पेड़े बना रही थी। तवा उसने चूल्हे पर रख दिया था। फ्रीज़र में रखे होने की वजह से आटा यख होने के अलावा सख्त भी हो रहा था। वो पूरी ताकत से पेड़े को बेलन से बेल रही थी और भरपूर कोशिश के बावजूद रोटी गोल नहीं पक रही थी। अजीब टेढ़े मेढ़े से नक्शे बन रहे थे। रोटी पकाने का उसे कोई मुकम्मल तजुर्बा भी नहीं था। कभी बहुत मूड में मामा होती तो उसे 1-2 रोटी पकाने देती थी, वरना किचन का मुकम्मल काम उन्होंने ही संभाल रखा था। उन्होंने उसे चीनी, पाकिस्तानी और अमेरिकन डिशें मुकम्मल बनानी सिखाई थी, मगर रोटी वो उससे नहीं पकवाती थी। अब शाहरुख की वजह से उसने हामी भर ली थी, मगर आटा ठंडा होने की वजह से उससे पकाना दुश्वार हो रहा था और नींद भी सख्त आ रही थी। सालन तो वो पहले ही गर्म करके टेबल पर रख चुके थे। लाइबा ने हिचकिचाते हुए रोटी टेबल पर मौजूद ट्रे में रखी। उसे यकीन था शाहरुख ज़रूर कोई रिमार्क्स पास करेगा, मगर खिलाफ मामूल वो दोनों उसे भी खाने के ऑफ़र करके पूरी तनदही से खाने में मसरूफ़ थे। लाइबा ने 2 रोटियां उन्हें पकाकर और दी, फिर बचा हुआ आटा बारीक प्लास्टिक कवर से ढक कर वापस फ्रीज़र में रख दिया। कुकिंग रैक पर से
तवा बेलन वगैरह उठाकर नीचे कैबिन में रख दिया और डस्टबिन से वहाँ की सफाई करने लगी। ये इत्तेफाकात है या वो पीछा करके हर जगह मौजूद होता है, मगर पीछा क्यों करने लगा जबकि मैं यहाँ बिल्कुल अचानक ही आई हूँ। 2 दिन कबल शाहरुख कराची आ गया था उन्हें लेने के लिए। उसने आते ही ज़बरदस्ती पैकिंग करवाई और शाम की फ़्लाइट से वो इस्लामाबाद आ चुके थे। यहाँ अंकल और आंटी ने बताया कि मामा की बीमारी से होने वाली कमज़ोरी, यहाँ की सेहत अफ़ज़ा आबो हवा उससे दूर हो जाएगी। मामा भी यहाँ आकर बहुत खुश थे। मान गए भाई, क्या नक्शे बनाती हो, वाह। जवाब नहीं तुम्हारे नक्शों का। वो सिंक में खड़ी हाथ धो रही थी। शाह भी हाथ धोता हुआ उसके बराबर में खड़ा हुआ मुस्कुराता हुआ बोला, खाकर बकवास कर रहे हो। वो तौलिए से हाथ साफ करते हुए बोली, उसामा मैं गलत कह रहा हूँ। वो बराबर में खड़ा उसामा की तरफ देखकर बोला, मेरे ख्याल में ये नक्शे कोलंबस को बर वक्त मिल जाते तो वो 2-4 शहर और दरियाफ्त कर सकता था। उसामा उसकी तरफ देखता हुआ बोला, जिसके लबों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। वाकई बहुत ज़्यादती हुई है बेचारे के साथ। शाहरुख हंसता हुआ बोला। लहबा खामोशी से टेबल से बर्तन उठा रही थी। शाहरुख ने चाय की फरमाइश कर दी। रात के 2 बजे कौन चाय पीता है? सालन की डिशे फ्रीज़र में रखते हुए बोली, हम पीते हैं, बल्कि तुम भी हमारे साथ पियोगी। शाहरुख बोला, मुझे नींद आ रही है, मैं इस वक्त कुछ खाने पीने की आदी नहीं हूँ। वो साफ गोई से कहती हुई चाय तैयार करने लगी। उसामा शाहरुख के साथ किसी सियासी बहस में उलझ रहा था। पहली बेसाख्ता निगाह के बाद उसने लाइबा को देखने से एहतियात किया था। वो नहीं चाहता था शाहरुख उसके जज्बों से आशनाई हासिल कर ले, और उससे बैद ना था कि वो उनके मिलाप के लिए बड़े से बड़ा इक़दाम करने से भी गुरेज नहीं करता, क्योंकि वो ऐसा ही था, बज़ाहिर लापरवाह, खलंडरा, मगर हकीकत में वो बहुत हमदर्द, पुरखुलूस दोस्तों पर जान देने वाला शख्स था। उसे मालूम था पहले उसे लाइबा की सच्ची मोहब्बत हासिल करनी है, जो कि एक मुश्किल तरीन मिशन था। दूसरे उसे अपनाने के लिए अम्मा जान जैसी नस्बरस्त चट्टान से टकराना होगा, और वो भी इस तरीके से कि उनकी अना और वकार मजरू ना हो, जो एक नामुमकिन बात थी। इन्हीं सोचों ने उसे कमज़ोर कर दिया था। यार चाय लो ना, क्या सोच रहे हो? शाहरुख उसकी तरफ देखता हुआ चाय का कप उसके आगे रखता हुआ बोला। शुक्रिया, उसने चौंक कर कप उठाते हुए कहा। मैं जा रही हूँ, किचन की लाइट ऑफ करके और दरवाज़ा बोल्ट करके आना। लाइबा शाहरुख से मुखातिब थी। उसने कप होंठों से लगाते हुए उसकी तरफ देखा। वाइट सूट में उसके पुरकशिश चेहरे पर बला की मासूमियत और सादगी थी। उसमें शोखी नाज अदा बिल्कुल भी नहीं थी, जो अमूमन इस उम्र की लड़कियों में पाई जाती है। उसकी यही सादगी, मासूमियत और संजीदगी उस खटोर को उसका सिर बना गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर, सच तुम्हारे हाथ के नक्शों ने खाने का मज़ा दुबाला कर दिया था। शाहरुख उसे अभी भी छेड़ने से बाज नहीं आया। वो तेज़ी से दरवाजे से बाहर निकल गई थी। धूप ढल गई थी, गर्मी की तमाज़त भी ख़त्म हो गई थी। तबिंदा अपने काम से फारिग होकर चारपाई पर रखे कपड़े छोटे बैग में रखवा रही थी। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी और वो खिलाफ आदत कुछ गुनगुना भी रही थी, मगर उसकी बुझी बुझी आंखें उसके मुस्कुराते लबों का साथ नहीं दे रही थी। उसके अंदर बेनाम हलचल मची हुई थी। वो बहुत हकीकत पसंद लड़की थी, ख्वाबों ख्यालों से दूर रहने वाली। उसने कभी खूबसूरत शहजादे के सुनहरे सपने नहीं देखे थे। बाप और भाई के अलावा किसी तीसरे मर्द की परछाई उनके आंगन में नहीं आई थी। बाप, भाई और फिर बहनोई के रिश्ते से वो आशना हुई थी। अफशा के शौहर उन्हें बिल्कुल बहनों की तरह समझते थे, बहुत इज्जत और तकद्दुस के साथ पेश आए थे। कभी उसने महसूस ही नहीं किया कि मर्द के और भी रूप होते हैं। इस जज्बे से रोशनास उसे फरहान ने करवाया। वो जो एक पुरसुकून बहती नदिया की तरह ज़िंदगी गुजार रही थी, उसकी पुरसुकून सतह पर तराजुम व इंतशार फरहान ने पैदा किया था। मोहब्बत के महकते रंगों से उसने मुतारिफ करवाया था। गो कि वो बहुत बोल्ड और समझदार थी, और अपने घरेलू मखदूश हालात की वजह से वो कुछ ज़्यादा ही अपनी उम्र से बड़ी और पुख्ता सोच रखती थी। उसने अपने और फरहान के दरमियान मौजूद मुआशी फ़र्क को महसूस किया था। अपने घर और फुप्पो के दरमियान जो नाखुशगवार ताल्लुकात के थे, उनको मद्देनज़र रखा था। वो नहीं चाहती थी फरहान के जज्बों की मामूली सी पजीराई भी की जाए। वो बहुत समझदार साबित कदम होने के बावजूद एक लड़की ही थी, बहुत नाजुक व खूबसूरत एहसासात रखने वाली। वो उम्र के इस दौर में थी जहाँ तिल्स्मी ख्वाब खुद ब खुद नींद बनकर आंखों में उतर आते हैं। अगर इन रंगीन सपनों में कोई मनचला अपनी सच्ची मोहब्बत की ताबीर देने आ जाए तो फिर दिल पर कहाँ इख्तियार रहता है। वो भी बहुत हौसले से फरहान के तमाम जज्बों की हौसला शिकनी करती आई थी, मगर अपने अंदर होने वाले तलातुम से भी वो बेखबर नहीं थी। लेकिन वो किसी लम्हे उसके सामने कमज़ोर नहीं पड़ी थी, और आज उसे अपनी इस साबित कदमी पर फ़ख्र था। अगर किसी लम्हे वो जज्बात के दबाव में आकर फरहान से इजहार कर देती तो वो यकीनन
آج ہر دیوار توڑ کر اسے اپنانا چاہے، اسے اس کے لیے کتنی ہی دشواریوں اور تکلیفوں سے گزرنا پڑتا۔ خدا کے لیے تابندہ، میرے سامنے یوں حد سے زیادہ خوش نظر آنے کی کوشش مت کرو۔ یہ تمہاری مسکراہٹ، یہ تمہاری گنگناہٹ، تمہارے اندر جلتے ارمانوں کا دھواں ہے۔ شمائلہ، جو باورچی خانے سے چائے کے 2 کپ لے کر برآمد ہوئی تھی، ایک کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے غصے سے بولی، تمہیں یوں ہی وہم رہتا ہے، نہ میرے اندر کوئی ارمان ہے اور نہ ہی کوئی الاؤ دیکھ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ سے کپ لیتے ہوئے مسکرا کر بولی، تم سمجھتی ہو تم نے یہ قربانی دے کر بہت اچھا کام کیا ہے؟ یہ بات تم مجھے پچھلے 1 ماہ سے سنا رہی ہو۔ تبندہ چائے پیتے ہوئے بولی، سخت احمقانہ حرکت کی ہے یہ تم نے۔ ایسی باتیں فلموں اور کہانیوں میں ہی ملتی ہیں، حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ ایسا احسار و وفا، فراق دلی، دوسروں کی راہ کے کانٹے چن کر اپنے حصے کے پھول بچھانے کا وقت نہیں رہا ہے۔ اب جو جتنا زیادہ مکار، خود غرض و خود پسند ہو، وہ اتنا ہی کامیاب رہتا ہے اس دور میں۔ شمائلہ کا غصہ کسی طور ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ لوگ ہیں ایسے، مگر سارے نہیں۔ اگر دنیا میں تمام لوگ ایسے ہی ہوتے تو یہ دنیا کب کی فنا ہو چکی ہوتی۔ میرے نزدیک زندگی کا مفہوم ہی قربانی ہے۔ اگر ہماری ذات کسی کے لیے مسرت کا باعث نہیں ہے تو کیوں ہم کسی کے لیے رنج کا سبب بن جائیں؟ تبندہ سنجیدگی سے بیگ میں کپڑے وغیرہ رکھ کر بند کرتے ہوئے بولی، میں ایک بار پھر کہہ رہی ہوں تابی، مت جاؤ پلیز۔ ہم اتنے معتبر لوگ لیں گے جو ہمارے نہ جانے سے حسنہ کی شادی رک جائے گی یا ہماری کمی محسوس کی جائے گی، بلکہ وہاں جا کر تم اور بکھر کر رہ جاؤ گی۔ ابھی صرف تم سن رہی ہو کہ فاران بھائی کی حسنہ سے شادی ہو رہی ہے، مگر وہاں جا کر دیکھو گی تو برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ اور چھوٹی پھپھو کی نمائشی عادت سے واقف تو ہو تم، وہ بات بات پر تمہیں احساس دلائیں گی تمہارے اور فاران کے تعلقات کا۔ ویسے بھی اپنے فتح یاب قلعے پر کسی دوسرے کی فتح کا پرچم لہراتے دیکھنا بہت زیادہ برداشت اور حوصلے کی بات ہے، اور میں تمہیں… خاموش ہو جاؤ شمو، مت مجھے ورگلا کر میرے نیک فیصلوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرو۔ میں نے کبھی ان کے جذبوں کی پذیرائی نہیں کی، نہ کبھی انہیں کسی خوش فہمی میں مبتلا کیا۔ جب میرا کوئی قصور ہی نہیں ہے تو میں مجرم کیوں بن گئی ہوں؟ کیوں میں قصوروار گردانی جا رہی ہوں؟ کچھ نہ کرنے پر بھی سب کچھ کرنے کا الزام مجھ پر ہی کیوں ہے؟ تبندہ گویا برداشت کی حد عبور کر چکی تھی۔ نمکین پانی جو عرصے سے اس کے من میں جمع ہو رہا تھا، شمائلہ کی مسلسل بحث و تکرار سے بے قابو ہو کر چھلک پڑا تھا، اور وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی تھی۔ شمائلہ چاہتی بھی یہی تھی کہ اس کے دل کا سارا غبار آنسوؤں کی صورت میں نکل جائے۔ اس نے فاران کے ساتھ مل کر اسے ہر انداز میں چھیڑا تھا اور فاران کے ساتھ اسے سبز باغ دکھائے تھے، اس لیے وہ خود بھی اپنی نگاہوں میں اس کی مجرم تھی۔ میرے ارادوں میں کوئی کھوٹ اور لالچ نہیں تھا، میں اپنی بہن کا مستقبل سنوارنا چاہتی تھی۔ اے رب، تو گواہ رہنا، میں بے قصور ہوں۔ شمائلہ بہتی آنکھوں سے اوپر آسمان کی طرف دیکھتی ہوئی اللہ سے مخاطب تھی۔ مری کی فلک بوز پہاڑیاں سنہری دھوپ سے چمک رہی تھی، ان کی چوٹیوں پر جمی برف سورج کی شعاعوں سے ہیروں کی طرح جگمگا رہی تھی۔ پہاڑوں کے سینوں سے بہتے جھرنوں اور گرتے آبشاروں نے وہاں کی شادابی و خوبصورتی کو اجاگر کر دیا تھا۔ ہر سو پھیلے سبزے اور خوشنما شوخ رنگ پھولوں نے نگاہوں کو ٹھنڈک بخشی تھی۔ چاروں طرف قدرت کا حسن بہت فراق دلی سے بکھرا ہوا تھا۔ موسم بھی بہت دلکش ہو رہا تھا۔ لوگوں کی بڑی تعداد وہاں پکنک کے لیے آئی ہوئی تھی۔ افتخار صاحب نے رات کو مری آنے کا پروگرام بنایا تھا۔ آنٹی اور ماما نے رات ہی ڈشیں بنا لی تھی۔ لائبہ اور طوبہ نے سامان سیٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ صبح ناشتے کے بعد وہ 2 کاروں میں مری کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ لائبہ، طوبہ، دادی شاہ رخ کی کار میں بیٹھی تھی، جبکہ افتخار صاحب، بیگم افتخار، ماما اور ملازم اسامہ کی کار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صبح شاہ رخ اسامہ کو لے آیا تھا، افتخار صاحب بھی اسے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ اونچے نیچے دل فریب راستوں سے وہ دوپہر تک مری پہنچے تھے اور ایک سرسبز پھولوں سے مہکتے گوشے کا انتخاب کر کے وہاں قالین بچھا کر سب لوگ دائرے کی صورت میں بیٹھ گئے تھے۔ بیٹھتے ہی شاہ رخ نے بھوک کا شور مچا دیا تھا۔ کھانے کا ٹائم بھی ہو گیا تھا۔ لائبہ اور طوبہ نے ملازمہ کے ساتھ مل کر دسترخوان لگانے کے بعد برتن رکھنے شروع کر دیے تھے۔ آنٹی اور ماما ڈشوں میں سالن وغیرہ نکال رہی تھی۔ ملازم سامنے بہتے جھرنوں سے کولر بھرنے چلا گیا تھا۔ بہت خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا، جس کے بعد شاہ رخ کے اشارے پر وہ اٹھ گئی تھی۔ ماما، آپ تو چلے نا؟ انکل اور آنٹی کے بعد لائبہ ان سے مخاطب ہوئی تھی۔ آپ جاؤ، میرے لیے اونچے نیچے راستوں پر چلنا خطرناک ہوگا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ ہم یہیں سیر کر لیں گے، آپ بے فکر ہو کر انجوائے کریے، آنٹی مسکرا کر بولی۔ آپ چلے نا دادی جان، وہ گاؤں تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تسبیح پڑھتی دادی سے بولی۔ بیٹی، میں تو کار میں بیٹھے بیٹھے ہی تھک گئی ہوں،
टांगों में इतनी ताकत चलने फिरने की कहाँ है। और तुम लोग जाओ और देखो, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। अभी धूप निकल रही है, चंद मिनटों में बारिश भी हो सकती है, आंधी भी चल सकती है, कोई भरोसा नहीं होता। उन्होंने लंबा लेक्चर दिया था। वो दुपट्टा दुरुस्त करती उनके साथ आगे बढ़ने लगी। वो बहुत मसरूर थी, कुदरती हुस्न की वो दीवानी थी। सब्ज़ा, फूल, झरने, आबशार, बारिश उसे बेइंतहा पसंद थे। यहाँ फैली बेइंतहा खूबसूरती ने उसके वजूद पर छाई रहने वाली उदासी और संजीदगी वक्ती तौर पर गायब कर दी थी। उसके चेहरे पर मुसर्रत का उजाला था। समी कलर के जॉर्जेट की कढ़ाई वाले सूट में वो बहुत फ्रेश और हसीन लग रही थी। तूबा की हालत भी उससे कम न थी, वो भी बहुत खुश थी। उसकी फुल स्पीड से चलती ज़बान नॉन स्टॉप चल रही थी। तुमने क्या आज खामोशी का रोज़ा रखा हुआ है, या ज़बान कहीं किराए पर दे आए हो? शाहरुख साथ चलते हुए उसामा से मुखातिब हुआ था। तुम्हारे आगे किसी दूसरे को मौका कहाँ मिलता है, वो मुस्कुरा कर बोला। अच्छा चलो, कोई गज़ल, लतीफ़ा या शेर सुनाओ, शाहरुख ने फरमाइश की। ये काम तुम्हारे हैं, मुझ पर सूट नहीं करते, उसामा हंसते हुए बोला। बोर इंसान जो ठहरे। अच्छा चलो, कोई तकरीर ही सुना दो, ये तो तुम पर सूट करती है। ये मौका नहीं है तकरीर करने का, मैं हर काम उसके वक्त पर ही करने का आदी हूँ। क्यों उसामा भाई का दिमाग खा रहे हो, खुद ही कुछ सुना दो ना, तूबा उसकी तरफ देखकर बोली। अगर इनमें दिमाग होता तो बात ही क्या थी, वो मुंह बनाकर बोला, जबकि उसामा हंस पड़ा था। रास्ते में सेब के दरख्तों की बहुतायत थी, जहाँ से उसामा और शाहरुख ने सुर्ख सेब तोड़े। उनका जायका बहुत लजीज था। वहाँ घूमते हुए उन्हें 3 घंटों से ज़्यादा वक्त हो चुका था। शाम का सुरमई धुंधलका हर सू फैलना शुरू हो गया। डूबते सूरज की आखिरी शुआएं फैली हुई थी। उसामा उन्हें लेकर रेस्टोरेंट में आ गया। वेटर को स्नैक्स और चाय का ऑर्डर देकर उनके साथ कुर्सी पर बैठ गया। अब हमें आंटी अंकल के पास चलना चाहिए, बहुत टाइम हो गया है, लाइबर रेस्ट वॉच देखते हुए बोली। हाँ, अब तो चल चल कर टांगों में दर्द भी होने लगा है, तूबा बोली। टांगों में या ज़बान में? जब से आई हो दोस्तों की बुराइयों में मगन हो। शाहरुख जो उसामा के बराबर में आंखें बंद करके बैठा था, आंखें खोलते हुए कहा। तुमसे बात नहीं की है मैंने, खामोश रहो तुम, तूबा चिढ़कर बोली। सच कहने वाला हमेशा ही बुरा लगता है। शाहरुख उससे लड़ने के मूड में था। शाह प्लीज़, हर जगह लड़ने के लिए तैयार मत रहा करो, लाइबा तूबा के तेवर बदलते देखकर बोली। तुम भी इसकी हमायत ले रही हो? जाहिर सी बात है, इसकी दोस्त जो हुई, मगर किसी खुश फहमी में मत रहना, मेरा दोस्त भी है साथ, मुकाबला ज़ोरदार होगा, उसामा की तरफ इशारा करते हुए बोला। पहले इनसे मुकाबला कर लो, फिर कुछ सोचना, उसामा प्लेट उसकी तरफ खिसकाता हुआ बोला, जो भी वेटर सर्व करके गया था। लाइबा महसूस कर रही थी उसामा की मोहताज निगाहों की तपिश, जो लम्हे भर को उसकी तरफ उठती थी और फ़ौरन झुक भी जाती थी। शायद तूबा और शाहरुख की वजह से वो बहुत ज़्यादा मोहताज था। यहाँ उसने एक बार भी उसे मुखातिब नहीं किया था। उसने आज ये महसूस किया था वो बहुत ज़्यादा संजीदा, गुमसुम, परेशान था, जो उसके बज़ाहिर पुरसुकून नज़र आने पर भी मुतमईन नहीं था। चिकन बर्गर खाती लाइबा की सोचें उसके अतराफ़ ही घूम रही थी। सर, वेटर कांच की डेकोरेशन प्लेट में एक विजिटिंग कार्ड लाया था, जो उसने मुअद्दब अंदाज में उसामा की तरफ बढ़ा दिया। शाहरुख, तुम अंकल के कॉटेज में सबको लेकर चले जाना। मैंने सुबह फ़ोन करके मुलाजमीन को सफाई वगैरह का कह दिया था। मेरे आने में कुछ देर हो जाएगी। उसामा कार्ड पढ़ने के बाद खड़ा होता हुआ बोला। चाय तो पी लो, कुछ खाया भी नहीं है तुमने। देर हो रही है मुझे, वो तेज़ी से वेटर के साथ चल दिया। किसके पास जा रहे हो उसामा भाई? कार्ड किसका था? तूबा के लहजे में काफ़ी हैरानी थी। इसके दोस्तों की तादाद बेशुमार है, होगा कोई दोस्त ही जिसने इसे यहाँ देखकर पहचान लिया होगा, शाहरुख चाय पीते हुए बोला। क्या हमें यहाँ रुकना पड़ेगा? तूबा कप टेबल पर रख कर बोली। कल चलेंगे, वापसी में रात हो जाएगी, और रास्ता देखा है तुमने कितना ख़तरनाक है। अभी दिन की रोशनी में ये मनाजिर हसीन लग रहे हैं, मगर अंधेरा फैलते ही इनकी दिलकशी हैबतनाक हो जाएगी, शाहरुख वेटर को इशारे से बुलाता हुआ बोला। बिल तो जी वो साहब पेमेंट कर गए हैं, वेटर शाहरुख के बिल मंगवाने पर उसामा का हवाला देता हुआ बोला। वाकई अभी दुनिया अच्छे लोगों से खाली नहीं हुई है, शाहरुख हंसता हुआ उनके साथ उठ गया था। कल शॉपिंग के बाद घर चलेंगे, आज का दिन तो घूमने फिरने में ही पूरा हो गया है, तूबा लाइबा से मुखातिब हुई। तुम लड़कियों को शॉपिंग का इतना क्रेज़ क्यों होता है? कहीं भी जाओ शॉपिंग सेंटर पर सबसे पहले निगाह रखती हो, शाहरुख बोला। जाहिर सी बात है, अगर हम शॉपिंग नहीं करेंगे तो शॉपिंग सेंटर चलेंगे कैसे? हाय रे खुशफहमी, वाकई तुम्हारी कौम इस खुशफहमी में शिद्दत से मुब्तला रहती है। मेरी समझ में नहीं आता, तुम दोनों हर बात में लड़ने का पहलू क्यों निकाल लेते हो? लाइबा जो देर से दोनों की नोक झोंक सुन रही थी, दरमियान में बोली।
तुम तो इकलौती हो इसलिए महसूस नहीं कर सकती। ये भाई नामी शहर कैसे ज़िंदगी अजीरन कर देते हैं। हर वक्त रोब, हर वक्त गुस्सा, खामखा का जिज करके रख देते हैं। तूबा बोली, तुम जैसी मतलबी बहनें किसी चुड़ैल से कम थोड़ी होती है। हर वक्त फरमाइशें, हर वक्त नखरे, खामखा के तंग करके रख दिया है। शाहरुख बिल्कुल उसी के अंदाज में बोला। लाइबा उसके स्टाइल पर खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसे हंसते देखकर तूबा मजबूरन मुस्कुराने लगी। सूरज डूब चुका था। सुरमई अंधेरा धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया था। दरख्तों पर परिंदों की वापसी शुरू हो चुकी थी। उनकी मखसूस चहचहाहट से फिजा गूंज उठी थी। हवा में भी ठंडक बढ़ चुकी थी जिससे हल्की का एहसास हो रहा था। वो तीनों बातें करते आगे बढ़ रहे थे। तूबा कैमरा इस्लामाबाद में ही भूल आई थी। इस वजह से शाहरुख दोबारा उससे बहस करने लगा था। तूबा अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। गलती हालांकि उसी की थी। कैमरा वो वार्डरोब से निकालना भूल गई थी। तूबा ये तुम्हारी गलत बात है। इंसान वहीं बेहतर होता है जो अपनी गलती पर शर्मिंदा हो जाए। सॉरी कर लो शाह से बात ख़त्म हो जाएगी। लाइबा तूबा को समझाते हुए बोली, सच्चा दोस्त वही होता है तूबा जो झूठी तारीफ के बजाय सही और गलत में फ़र्क बताए। 1 महीने तुम इसको ट्यूशन पढ़ा दो, कुछ तमीज़ आ ही जाएगी। लड़ते और बहस करते वो अंकल वगैरह के पास पहुंच गए जहां दादी ने इतनी देर से आने पर खासा लेक्चर दिया था। कॉटेज मैंने कल तक के लिए रिजर्व करवा लिया है। आप लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। उसामा कहाँ है? तखार साहब शाहरुख से बोले। वो अपने दोस्त के साथ गया हुआ है और उसने रूहेल अंकल का कॉटेज मुलाजमीन से खुलवा दिया है। वहाँ मुलाजमीन हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे और उसामा भी वहीं आएगा। लेकिन मैंने भी कॉटेज रिजर्व करवा लिया है, वो कुछ उलझे लहजे में बोले। छोड़िए डैडी, उसामा ने यहाँ आने से कबल ही कॉटेज खुलवा लिया था। अगर अब हम वहाँ की बजाय दूसरे कॉटेज में गए तो वो अपनी तौहीन समझेगा। उसकी नेचर आप अच्छी तरह जानते हैं। शाहरुख के समझाने पर वो वहाँ जाने पर राज़ी हो गए थे। 1 घंटे बाद वो सुर्ख मार्बल से बने ऑस्ट्रेलियन तर्ज के नहायत खूबसूरत कॉटेज में दाखिल हो रहे थे। पूरे कॉटेज के अंदर बाहर से बड़ी मुहारत से फूलों और पौधों से आराइश की गई थी। हर रंग के फूल थे। दूर से कॉटेज गुलदस्ते ही की तरह लग रहा था। सबकी निगाहों में सताइश थी। उनका इस्तकबाल 3 मुलाजमों ने किया था। सबको कमरे बताए। तूबा ने लाइबा के साथ रहने का फ़ैसला किया था। कमरे भी बहुत ज़ौक़ से डेकोरेट किए गए थे। मामा उनके करीब बैठी सारे दिन की तफरीह के बारे में पूछ रही थी। वो सब मज़े से उन्हें बता रही थी। लाइबा को खुश देखकर वो बहुत मुतमईन थी। मुलाजमीन ने चाय लगा दी है, चले चाय पी लें, आंटी कमरे में आकर बोली। मुलाजमीन बहुत जुक्कड़ दिखते हैं। पूरे कॉटेज को उन्होंने आईने की तरह चमका रखा है। दरअसल रोहेल भाई शाम मिजाज इंसान है। मुलाजमीन को ज़्यादा तनख्वाहें देने के अलावा हर किस्म की सहूलतें भी दे रखी है। जब मालिक मुलाजमीन का इस कदर ख्याल रखते हैं तो मुलाजमीन भी खलूस से खिदमत करते हैं। और ये तो है ही पहाड़ी लोग। आंटी रोहेल साहब नवाब हैं। लाइबा उनकी तरफ देखते हुए गुमसुम लहजे में बोली। यूँ ही समझ लो, अंकल का शुमार मुल्क के बड़े आर्किटेक्चर्स में होता है। वैसे भी वो जागीरदार हैं, पैसा बहुत है, मगर आदत उनकी बहुत अच्छी है। बहुत मेहरबान, बहुत शफीक इंसान है। कभी मिलाऊंगी, देखना बहुत खुश होगी उनसे मिलकर। बालों में बैंड डालते हुए उनसे बोली, चलें पहले चाय पी लें, फिर बातें करेंगे। सब टेबल पर इंतज़ार कर रहे हैं। आंटी कुछ बुखला सी गई थी। आंटी मैं तो अब सोऊंगी, चाय की बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं है। लाइबा ड्रेस चेंज करने के घर से बाथरूम की तरफ जाते हुए बोली। सुबह बहुत निखरी हो, बड़ी खूबसूरत थी। सूरज अभी निकला नहीं था। ठंडी फिजा पर ख्वाबनाक अंधेरा छाया हुआ था। सेब, आलूचे, खुबानी दरख्तों से टूटकर उनकी घास पर बिखरे हुए थे। पंछी कतार दर कतार आसमान पर आज़मे सफ़र थे। सामने ऊंची ऊंची पहाड़ियों की चोटी पर बादल धुएं की सूरत बिखरे हुए थे। लाइबा टेरेस की रेलिंग से झुकी बाहर कतारों को देख रही थी। बज़ाहिर उसकी निगाहें सामने बहते आबशार पर थी, मगर उसका जहन कहीं और भटक रहा था। कल जोशो खरोश, मुसरत व शादाबी उसके चेहरे पर थी, वो इस वक्त बिल्कुल गायब थी। रात को वो इशा की नमाज़ पढ़ते ही सो गई थी। मामा ने ज़बरदस्ती उसे चाय के साथ पॉन्स्टोन टैबलेट दे दी थी। आंटी और अंकल के इसरार के बावजूद उसने खाना नहीं खाया था और सबसे पहले सो गई थी। सुबह फजर के वक्त उसकी आंख खुली थी। उसने नमाज़ पढ़ने के बाद बहुत मुश्किलों से तूबा को उठाया और उससे ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़वाई थी। नमाज़ पढ़ने के मामले में वो बहुत लापरवाह थी। नमाज़ पढ़ते ही वो दोबारा सो गई थी। लाइबा ने एक सिपारा पढ़ा और सूरह यासीन और अहदनामा पढ़ने के बाद वो कमरे से बाहर निकल आई। सबके कमरे बंद थे। दाएं जाने बने किचन के से मुलाजमीन के बोलने और बर्तनों की आवाज़ आ रही थी। वो खामोशी से सीढ़ियाँ बोर करके ऊपर आ गए और फिर रेलिंग पर झुक कर इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगी। उसके जहन में बचपन के बेशुमार वाक़यात फिल्म की मानित घूम रहे थे। वाशिंगटन के महंगे तरीन हॉस्टल के यख बस्ता ग्लास वॉल से
चेहरा टिकाए। एक मासूम चेहरा उसके जहन में अभी तक महफूज था, जिसकी मासूम ग्रीन मुंतज़िर निगाहें सामने साफ़ो शफाफ सड़क पर जमी रहती थी। पढ़ाई से फरागत के बाद जब सब बच्चे खेल कूद में मशगूल हो जाते थे, वो ग्लास वॉल से चेहरा टिकाए सामने नज़र आने वाली सड़क को घूरती रहती। वहाँ आने वाली हर कार को वो बेताबी से देखती और उनसे बरामद होने वाले अफराद को देखकर उसकी आंखों में जलती मुसर्रत की किरणें बुझ जाती। वो दोबारा से फिर दूसरी आने वाली कारों को पुरुमीद निगाहों से देखने लगती और फिर ये मायूसी और उम्मीद का सिलसिला मैडम सकीना की आमद पर ही ख़त्म होता, जो बहुत मोहब्बत से समझा कर बहला कर उसे उसके रूम में ले जाती। उनकी दिलचस्प कहानियों में भी उसका कतई दिल नहीं लगता। वो अपनी सोचों में इस कदर मुस्तग़रिक़ थी कि उसामा की आमद को महसूस ही न कर सकी, जो अपने कमरे की खिड़की से उसे देखकर ऊपर चला आया था। उसामा कुछ देर उसे बगौर देखता रहा। वो मुजस्मे की तरह वहाँ खड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब कैफियत थी। कल वो बहुत एक्साइटेड थी, अभी उसका चेहरा मुरझाए हुए फूल की मानिंद लग रहा था। उसामा जाकर उसके पीछे खड़ा हो गया, उसे मतवज्जा करने के लिए ज़ोर से ज़रा सा झुककर उसके चेहरे पर फूंक मारी थी। उसका रद्द-ए-अमल तवक्को के मुताबिक हुआ। लाइबा ने चौंक कर उसको देखा था। नज़दीक खड़े उसामा को देखकर उसे यकीन न आया, वो इतना फ्रैंक भी हो सकता है। मगर उसकी खूबसूरत लबों पर मुस्कुराहट और आंखों में शरारत देखकर उसकी पेशानी पर नागवारी की शिकने नमूदार हो गई। रोहेल साहब आपके रियल अंकल हैं? उसकी आंखों से छलकते जज्बे किसी दोशीज़ा के सर से ढलके आंचल की तरह बेकाबू दिखाई दे रहे थे। वो जो गुज़श्ता अरसे से अपना रास्ता भटक कर उसकी राह पर चल पड़ा था, गो के लब उसके खामोश ही रहे थे, चेहरा भी बेतासुर रहता था, मगर उसकी ख्वाबदीदा आंखों की आफाक की ज़बान जो हर एक पर बआसानी और बग़ैर तर्जुमान के समझ सकता था। वो भी कोई नासमझ और नादान नहीं थी, बल्कि बेपनाह एहसास और नर्म तबीयत के बाइस कुछ बातें बिन कहे ही समझ जाया करती थी। और उसकी आई लैंग्वेज वो उसी वक्त पहचान गई थी जब उसने मुश्तइल अंदाज में जमशेद खान से उसका बाजू छुड़वाया था। उस वक्त उसकी आंखों में गैज़ो गज़ब के साथ जो उसके लिए अपनाहत के जज्बे थे, वो बारिश के पानी की तरह उस पर बरस पड़े थे। उसी वक्त से वो उससे निगाहें चुराने लगी थी। उसकी हर मुमकिन कोशिश यही होती थी कि वो उससे जितना दूर रह सकती है रहे, और अपनी इस एहतियात में वो एक हद तक कामयाब भी रही थी। मगर हर बार ऐसा तो नहीं होता ना कि जो हम सोचें, जो हम चाहें, जो हम तमन्ना करें, वो सारी की सारी ही पूरी हों। इस मकाम पर आकर ही इंसान अपने रब को पहचानता है कि हमें पैदा करने वाला और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा करने वाला वो रहमान और रहीम ही है, जिसकी मर्ज़ी से सब कुछ होता है। वहीं दुआओं को कबूल करने वाला भी है, वहीं तमन्नाओं, उम्मीदों और ख्वाहिशों को पूरा करने वाला भी है। हमारा काम सिर्फ दुआ मांगने और उम्मीदें बांधने का है, इससे ज़्यादा हमारा इख्तियार नहीं है। और उसामा का उससे टकराव भी कुछ ना कबूल होने वाली दुआओं का ही नतीजा था। मगर इस वक्त जो उसने बेख्तियार बेबाक हरकत की थी, उसने लाइबा जैसी बाग किरदार और संजीदा लड़की को पल भर में सख्त मुश्तइल कर दिया था। वो उसे सख्त जवाब देना ही चाहती थी कि उसके चेहरे पर नज़र पड़ते उसकी तेज़ी से खुलते लब सख्ती से बंद हो गए। उसे महसूस हुआ जैसे कि अभी उसके गूंगे जज्बों को ज़बान मिल गई हो। उसकी नढाल ऊँगती तमन्नाएं आज पूरी तरह तंदुरुस्त और तवाना होकर मुकम्मल तौर पर जाग गई हों। आज उसके खामोशी से बहते समंदर के मोहब्बत के समंदर में शदीद तग़यानी आ गई हो, जो अभी सब हिफाजती बंद तोड़कर तमाम मजबूत पश्तों को तोड़कर बह निकलेगा और उसकी महतातु मजबूत रविश को भी तिनका तिनका बिखेर देगा। और वो बिखरना नहीं चाहती थी, टूटना नहीं चाहती थी। वो उसके गूंगो जज्बों को ज़बान नहीं देना चाहती थी, इसलिए फ़ौरन ही संभल गई और सारी रात ज़हन में गूंजने वाले सवाल को पूछ बैठी, जी वो मेरे सगे चचा हैं। कुछ लम्हे वो उसके चेहरे के बदलते रंगों को देखता रहा। आपको ये सुनकर खुशी नहीं हुई? लाइबा के तासुरात को वो कोई नाम न दे सका तो बोला, नहीं, मेरी खुशी और दुख का यहाँ क्या ताल्लुक़। मैं सोच रही थी ये कॉटेज बहुत खूबसूरती से बना हुआ है, सब्ज़े और खूबसूरत फूलों से ढका हुआ घर बिल्कुल गुलदस्ते की मानी लगता है। ये चचा जान की ही काविश है। दरअसल चचा जान बहुत बड़े और नामवर आर्किटेक्ट हैं। ये मुकम्मल कॉटेज भी उन्होंने अपने आइडिया और पसंद के मुताबिक बनवाया है। शमीर से तो आपकी मुलाकात हो ही चुकी है अस्पताल में, उसके ही डैडी हैं वो तफसील से उसे बता रहा था। और लाइबा जैसे मुजस्मे की तरह साकित खड़ी सी रह गई थी। उसामा भी शायद उसकी कुर्बत की चाह में उससे तवील गुफ्तगू कर रहा था। ये इस हसीन तरीन वादी की सहर खेजी थी, हुस्न का सहर था। या लाइट पिंक सादे शलवार सूट में
गुलाबी रंग के दुपट्टे में मलबूस उसके हुस्न होश रुबा का असर था कि वो जो अपने जज्बों की हद बंदी कर चुका था, उसे अपनी मर्दानगी की तौहीन उसके आगे करना पसंद नहीं थी। उसने सोच लिया था अगर वो खुलूस से दिल से सच्चे जज्बों के साथ उसकी पजीराई करेगी तो वह रास्ते की रुकावटों को सहल करने की कोशिश करेगा। उसे बाइज्जत और बावकार तरीके से वो अपनाना चाहता था, क्योंकि उसे पाना कोई इतना आसान भी ना था, मगर वो मुश्किल पसंद इंसान था, तकदीर से ज़्यादा तदबीर पर यकीन रखने वाला। इस मकसद में वो अब तक कामयाब भी रहा था। मरी में उसने तमाम दिन उसे नज़रअंदाज किया था और अपने इस एक तरफा अमल पर उसने लाइबा को भी बहुत मुतमईन और पुरसुकून पाया था। फिर ये बात तो वाज़ेह हो गई थी कि वो उसके जज्बों से आशना है, उसकी चाहत के रंगों को वो देख चुकी है, मगर उसकी मोहब्बत की हौसला अफजाई वो करना नहीं चाह रही थी। क्यों नहीं करना चाह रही थी? यही सवाल उसके जहन में गूंज रहा था। शायद वो इस तरह बददिल करके उसके किसी गुज़श्ता रवैये का इंतकाम ले रही है, या उसकी दिलचस्पी किसी और तरफ है। और यही सोचकर उसे महसूस होता था जैसे खून की जगह उसकी रगों में लावा दौड़ने लगा हो, जिसकी जलन और तपिश से वो खुद को अलाव की तरह जलता हुआ महसूस करता। आजकल वो जिन हालात से गुजर रहा था उसने उसे मामा बना दिया था। वो फजर की नमाज से फारिग होने के बाद हस्बे मामूल जॉगिंग पर निकल गया था। वापसी में उसकी नज़र टेरेस पर खड़ी लाइबा पर पड़ी। फिर वो ना चाहते हुए भी ऊपर की तरफ बढ़ते अपने कदम रोक नहीं सका था। ऊपर रेलिंग पर झुकी लाइबा अपनी सोचों में इतनी खोई हुई थी कि वो उसके आम को महसूस ही न कर सकी, और उसे वो इस वक्त यहाँ फैले हुए खूबसूरत नज़ारों से ज़्यादा दिलकश हसीन लगी थी। और उसने बेख्तियार ही उसे अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए ज़रा सा झुक कर उसके चेहरे पर फूंक मारी थी। वो मेकानिकी अंदाज में चौंक कर मुड़ी थी। उसके चेहरे पर बहुत नागवारी के तासुरात थे। उसने कुछ कहने के लिए लब खोलना ही चाहा था, मगर उसकी निगाहों में अपनी शबीह देखकर उसने फ़ौरन ही गड़बड़ाकर निगाहें झुका ली थी और उसकी हरकत नज़रअंदाज करते हुए पूछ बैठी थी। इतनी देर में वो भी कदर संभल गया था। मुलाजिम चाय लेकर ऊपर आ गया था और उसके इशारे पर संगी मेज़ पर रख कर चला गया था। सूरज दूर सुरमई पहाड़ों के पीछे से अपना उजाला बिखेरता निकल रहा था। फूलों और सब्ज़े पर गिरे शबनम के कतरे हीरो की मानी चमक रहे थे। आसमान पर पंछी भी अपने दाना पानी की तलाश में महवे परवाज थे। वो दोनों खामोशी से चाय पी रहे थे। उसामा ने 2-3 बार चोर निगाहों से लाइबा के चेहरे का जायज़ा लिया था। उसके चेहरे से जाहिर हो रहा था वो इस वक्त शायद मेहमान होने के ख्याल से ज़बरदस्ती उसके सामने ठहरी हुई है। फिर चाय पीते ही वो कप मेज़ पर रखकर बगैर कुछ कहे तेज़ी से नीचे चली गई। उसामा खामोशी से उसकी पुश्त देखता रह गया। उसे वो एक नफसियाती केस लगी थी। आज हसना की माइयों की रस्म थी। करीबी रिश्तेदारों की आम दोपहर से शुरू हो गई थी। हसना की दोस्तों और कज़न्स ने एक दिन पहले ही से डेरा डाला हुआ था और ज़रा सा मौका मिलते ही सब ढोल लेकर गाने बजाने बैठ जाते। ढोल की पुरजोर आवाज़ के साथ उनकी दिल ज़ोरदार तालियों और गानों के आम से कोठी के दरो दीवार गूंजने लगते। इस वक्त भी वो बड़े सारे दालान में बिछे कारपेट पर ज़ोरों शोर से गाने में मसरूफ़ थे। ज़रा ढोल की बजाओ गोरियो, मेरे संग संग गाओ गोरियो। लड़कियों की 2 पार्टियां बन गई थी। एक पार्टी हीरो के साथ थी, दूसरी पार्टी हीरोइन की साइड ले रही थी। बहुत दिलचस्पी से वो गाने की नकल कर रही थी। ताबिंदा कल अम्मी के साथ यहाँ आ गई थी। उसने शुमाइला को भी बहुत साथ आने के लिए समझाया, मगर शुमाइला किसी तौर भी उसके साथ आने पर रजामंद नहीं हुई थी। ताबिश के सालाना इम्तिहान हो रहे थे, वो इस वजह से नहीं आ सकी थी। खुर्शीद बीबी भी उसे छोड़कर कुछ देर बाहर चली गई थी। पुप्पो ने खिलाफ मिजाज उसकी आम की बहुत पजीराई की थी। बकौल शुमाइला ये भी उनके मकार फितरत की चालाकी थी। ताबिंदा, शाम की चाय का वक्त हो गया है, ज़रा किचन में जाकर चाय तो बनाओ सबके लिए। रुकैया पुप्पो की बड़ी बहू से मुखातिब हुई, जो अभी हसना के जहेज़ के कपड़ों के प्लास्टिक की थालियों में डिज़ाइनिंग से सेटिंग करके फारिग हुई थी। जी अच्छा। ताबेदारी और खिदमत गुजारी तो उसकी सरशत में शामिल थी। सुबह से जोड़े लगाते लगाते कमर अकड़ रह गई थी। अभी उसे इन गाने गाती लड़कियों के पास बैठे चंद मिनट ही गुजरे थे कि बड़ी भाभी आकर फरमाइश कर गई थी। वो कमरों और दालान के दरमियान जदीद अमेरिकन तर्ज के किचन में आ गई। वाइट चिकने चमकदार टाइल से बना खूबसूरत किचन घर की ख़वातीन की काहली बेढंगेपन और बेपरवाही का मुँह बोलता सबूत था। ब्राउन एंड हनी शेड के कैबिनेट खुले हुए थे, जिनमें से कुछ के हैंडल टूट चुके थे, कुछ के टूटे हुए वहीं लटक रहे थे। खुले हुए कैबिनेट में बेतरतीबी से रखे बर्तन और डब्बे वगैरह रखे हुए बुरे लग रहे थे। ओवन का ग्लास डोर टूट चुका था। चूल्हे भी दूध उबलकर गिरने और मुसलसल उबल कर गिरने की वजह से जल कर अपना रंग खो चुके थे। सिंक गंदे बर्तनों से भरा पड़ा था, जिस पर मक्खियाँ और लाल बेग रेंग रहे थे।
तबिंदा की नफासत पसंद तबीयत मतला कर रह गई। उसकी निगाहों में अपना छोटा सा बावर्ची खाना घूम गया, जिसके एक कोने में नेमत खाना था। सामने छोटे स्लेब पर 2 चूल्हे रखे हुए थे। वहीं कोने में आटे का कंस्तर भी रखा हुआ था। वहाँ बामुश्किल एक फर्द बैठकर काम कर सकता था, जिसकी दीवारों पर लगे ब्रैक्टों पर अम्मी के जहेज के कदीमी ताम, चीनी और तांबे की बर्तन सजे हुए थे। उस अमेरिकन किचन के मुकाबले में उसे वो अपना दीमक ज़दा किचन बहुत बेहतर महसूस हुआ, जो उनकी सलीकाबंदी और सफाई पसंद तबीयत के बायस हमेशा साफ़ सुथरा रहता था। तबिंदा ने बर्तनों में दबी हुई कतीली निकाल कर धोई और उसमें पानी भरकर चूल्हा जलाकर रख दी। चीनी और पत्ती के लिए उसने तकरीबन सारे कैबिनेट देख डाले, मगर वो उन्हें दस्तयाब करने में नाकाम रही। चूल्हा बंद करके वो बड़ी भाभी से पूछने उनके कमरे में गई। उन्होंने सहूलत से कह दिया, मंजली भाभी से मालूम करो। वो अपने ऊपर उनसे मालूम करने गई तो वो मेकअप करने में मसरूफ़ थी। उन्होंने आई शेड दुरुस्त करते हुए छोटी भाभी का पता बता दिया। वो हाँफती हुई दूसरी मंजिल पर उनके कमरे में पहुंची तो वो अदा से बोली, मैं तो आज तक किचन की तरफ गई ही नहीं हूँ। दरअसल यहाँ किसी को भी आदत नहीं है ऐसे काम करने की। चीनी और पत्ती के बारे में तुम्हें बावर्ची ही बता सकेगा, उसी से मालूम करो। तबिंदा खामोशी से वहाँ से आ गई। बड़े घर में रहने वाले बड़े लोग, जिनके दिलों के दरमियान भी बड़े फासले थे, जो एक दूसरे से मोहब्बत का नहीं हसद का रिश्ता रखते थे, हर वक्त एक दूसरे को नीचा दिखाने की जुस्तजू में मगन, ये बड़े लोग थे। दौलतमंद और कोठी बंगले वाले लोग। इनसे तो हम गरीब लोग ही बहुत बेहतर हैं। हमारा घर छोटा है मगर दिल बहुत बड़े हैं, एक दूसरे की सच्ची मोहब्बत से लबरेज, जहाँ सब लोग अपने बदन का हिस्सा महसूस होते हैं। तबिंदा जो कल से यहाँ एक दूसरे के रवैये महसूस कर रही थी, बहुत सुकून से उसने सोचा, अरे भाई तुम कहाँ हो, कब से तुम्हें तलाश कर रही हूँ। वजीने उत्तर रही थी कि अंदर से हंसना उससे मुखातिब हुई, मैं पिछले 1 घंटे से चीनी पत्ती तलाश करती फिर रही हूँ, मगर किसी को भी मालूम नहीं है, तुम ही बता दो। वो नीचे आते हुए उससे बोली, तुमसे किसने कहा है चाय बनाने को? घर के सारे कामों की जिम्मेदारी नौकरों पर है, तुम क्यों चाय बनाओगी? चलो मेरे कमरे में, खान सामा खुद बना लेगा। वो तबिंदा का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। कंवल मार्केट के साइड में बने रिहायशी फ्लैट्स में रिहाइश पजीर हेड नर्स से मिलने आई थी, जो पिछले 1 हफ्ते से एक्सीडेंट हो जाने की बाइस अस्पताल से छुट्टियां लेकर घर पर आराम कर रही थी। उनसे मुलाकात के बाद वो जब उनके फ्लैट से निकली तो शाम का वक्त हो गया था। वो बैग कंधे पर डालती हुई सड़क पर आ गए। स्टॉप पर लोगों का हजूम था, रिक्शा टैक्सी कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। वो स्टॉप पर एक तरफ खड़ी हो गई। बसों में बैठने का उसे कोई तजुर्बा नहीं था, वैसे भी बसें और वैगनें इस कदर भरी हुई आ रही थी। इसके बावजूद वहाँ खड़े मर्द औरतें बच्चे बुरी तरह उनमें चढ़ रहे थे। कंवल का दिल उन्हें देखकर घबरा रहा था। मुल्क में तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी का अंदाज़ा ऐसी जगहों पर होता है। वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था। कंवल उकताहट के साथ साथ कुछ खौफजदा भी हो रही थी। कुछ गंदी जहनीत के लोग उसे मुसलसल घूरते हुए बाश अंदाज में फ़िक्रे कस रहे थे और कुछ अपनी गलीज़ आंखों के ज़रिए उसके जिस्म का पोस्टमार्टम करने में मसरूफ़ थे। उसे वहाँ खड़े रहना दुश्वार लग रहा था। अस्पताल से ड्यूटी ऑफ होने के बाद वो अकेली सिस्टर से मिलने चली आई थी। उसे मालूम न था वापसी में सवारी के लिए इतनी परेशानी उठाना पड़ेगी, वरना वो घर से ड्राइवर को फ़ोन करके बुलवा लेती। 4 दीवारी से बाहर निकलने वाली औरतें आज भी इतनी गैर महफूज और कमज़ोर हैं जितनी वो कुछ सदियों पहले थी। घर से मजबूरन बाहर कदम निकालने वाली औरत बाहर की दुनिया पर छाए हुए भेड़ियों की मानित मर्दों के लिए बगैर टिकट का दिलचस्प तमाशा होती हैं, जो माँ बेटी बहन के मुकद्दस और पाक रिश्ते से निकलकर सिर्फ और सिर्फ दिलकश महकता फूल बन जाती हैं, जिसे तोड़ने और मसलने के लिए लोग मौके की तलाश में रहते हैं। ऐसे बेगैरत और घटिया ज़हनियत मर्द ना तो मुसलमान ही कहलाने के हकदार होते हैं और ना ही इंसान। आइए मिस, हम आपको ड्रॉप कर देंगे जहां आप कहेंगी। कंवल ने नागवारी से देखा 2 लड़के जो करीब ही पीपल के दरख्त के नीचे खड़े बहुत देर से उस पर घटिया फिक्रे उछाल रहे थे। ना मालूम कहाँ से यह लोग कैब लेकर आए थे और अब उसमें से एक उसके करीब आकर कार में बैठने की फरमाइश कर रहा था। कंवल ने घबरा कर देखा। स्टॉप पर हजूम कम हो चुका था। कुछ मर्द खड़े शायद बस का इंतज़ार कर रहे थे। उनमें से कुछ तो आपस में बातों में मगन थे और कुछ उसकी तरफ इस तरह शौक से देख रहे थे जैसे वहाँ शूटिंग हो रही हो। सब सूरत हाल समझ रहे थे मगर बेहिसी और लाताल्लुकी जैसे उन पर ख़त्म हो गई थी। कोई भी उसकी मदद को तैयार न था। जाइए आप, मुझे टैक्सी मिल जाएगी, मैं चली जाऊंगी। वो बावजूद कोशिश के अपनी कपकपाती आवाज़ पर काबू न पा सकी। इस वक्त उसकी शक्ल देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो एक कामयाब डॉक्टर थी जिसकी मुस्कुराहट और खुश मिजाजी से मरीज़ अपना आधा दुख भूल जाया करते थे। जहाँ हम जैसे खादिम मौजूद हैं वहाँ आप परेशान क्यों हो?
आइए जिद न करें, हम बहुत अच्छे हमसफ़र साबित होंगे। दूसरा लड़का भी टैक्सी से निकल रहा था। कंवल ने घबराकर टैक्सी में बैठे ड्राइवर पर नज़र डाली। उसके होंठों पर भी खबीस मुस्कुराहट थी, आंखों से उन दोनों से ज़्यादा कमीनगी छलक रही थी। क्यों तंग करती हो बेचारी को? क्या तुम्हारे घर में बहन बेटियां नहीं हैं? एक बड़े मियाँ जो एक आदमी के साथ वहाँ आकर अभी खड़े हुए थे, फौरन मामला फाँमकर उन लड़कों से मुखातिब हुए। बड़े मियाँ, अपनी राह लो। हमारी बहनें इस वक्त घर से बाहर नहीं निकलती हैं, अगर कभी निकलती भी हैं तो पर्दे में बुजुर्गों के साथ निकलती हैं। उनमें से एक बहुत तंग लहजे में उनसे बोला, छोड़िए अब्बा, आप क्यों पराए फड्डे में टांग अड़ाते हैं? वक्त और हालात देखने के बावजूद जब ये लड़कियां मुंह उठाए तनहा घरों से निकल पड़ती हैं तो अंजाम भी इनका यही होता है। आजकल भलाई का वक्त नहीं, उल्टी नेकी गले पड़ जाती है। इन बड़े मियाँ के साथ खड़ा शख्स बहुत गुस्से से कंवल को घूरते हुए कह रहा था। फिर वो उनको ज़बरदस्ती बाजू से पकड़कर वहाँ से आगे ले गया। कंवल नदामत और खौफ से जर्द हो गई थी। कैसी नफसा नफसी और खुदगर्जी की फिजा मेरी इस मासूम शहर पर तारी हो गई है। हर एक दिल अजीज़ सोशल वर्कर की बेटी शहर के एसपी की लख्ते जिगर घुंडों में घिरी खड़ी थी। मजहब के बंधन से, इंसानियत के रिश्ते से सब अपने थे, मगर गैरतें कहाँ जा सोई थी। हिम्मतें दम तोड़ चुकी थी। मुहाफिज लुटेरे और तमाशबिन बन जाएं तो असमतें फिर यूं ही सरेराह नीलाम होती है। वो दोनों अब बाकायदा धमकियों पर उतर आए, मगर कंवल के जैसे सारे एहसासात मुंजमद हो गए थे। उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। सामने भारी ट्रैफिक का शोरगुल, फुटपाथ पर खड़े ठेलों पर बर्गर, फ्रूट, चाय और पान बेचते लोग, सब कुछ निगाहों से ओझल होता हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में अंधेरा बढ़ रहा था। यार, लगता है ये बेहोश हो रही है, एक आवाज़ आई। अच्छा है, फिर मसला नहीं होगा। दूसरी हंसती हुई आवाज़ उसकी समाज से टकराई थी। उसकी आंखों में अंधेरा तेज़ी से बढ़ रहा था। उसने बहुत संभलने और आंखें खोलने की कोशिश की, मगर उसके हवास साथ छोड़ रहे थे। उसने डूबते ज़हन के साथ महसूस किया शायद उन दोनों ने उसके हाथ पकड़ लिए थे। उसी लम्हे उसे करीब से बाइक की तेज़ आवाज़ सुनाई दी और दो मर्दाना दिल खराश चीखें भी। उसी लम्हे उसका जहन साथ छोड़ गया और वो बेहोश होकर फुटपाथ पर गिर गई। ट्रॉली में रखा टीवी फुल आवाज़ से स्टार्ट था। इस वक्त बच्चों का कोई प्रोग्राम आ रहा था। नबील सामने काउच पर लेटा टीवी देख रहा था। उसकी निगाहें टीवी स्क्रीन पर जमी हुई थी, मगर जहन उसका गैर हाजिर था। वो कमरे में होते हुए भी मौजूद नहीं था। आयशा जो किचन में चाय बना रही थी, काफ़ी देर से किचन के टीवी लाउंज में खुलने वाली खिड़की के शीशे से नबील का जायज़ा ले रही थी। उसकी निगाहों से बेखबर टीवी पर निगाहें जमाए अपनी सोचों में भटक रहा था। अभी वो नामालूम कितनी देर और घूम रहता। अगर उसे अपने पाँव पर नमी का एहसास न होता। उसने चौंक कर देखा, आयशा उसके नज़दीक बैठी बेआवाज़ रो रही थी और उसके आंसू पैरों पर गिर रहे थे। वो झटके से उठकर बैठ गया। आशी, क्या हुआ? उसकी तरफ झुककर परेशान लहजे में बोला। वो और भी तेज़ी से रोने लगी। तुम अगर इस तरह बगैर वजह बताए रोती रहोगी तो मैं मज़ीद परेशान होने के सिवा और क्या कर सकता हूँ? प्लीज़ मुझे बता, मुझसे कोई गलती हुई है? वो उसका हाथ पकड़कर अपने करीब बिठाते हुए बोला, जिस दिन से मैं आपकी ज़िंदगी में दाखिल हुई हूँ, आपको अलावा परेशानियों के दिया ही क्या है? मेरा वजूद ही नौसत की अलामत है। मेरी पैदाइश से पहले ही मेरे बाप का इंतकाल हो गया। जब पैदा हुई तो माँ मर गई। दादी ने बहुत प्यार और मोहब्बत से पाला, मगर बहुत जल्द वो भी दुनिया छोड़ गई। बचपन नामालूम किस तरह और किन गोदों में गुजरा, मगर होश संभालते ही भाई को अपने गिर्द हसार की तरह पाया। भाई मुझे बहुत चाहते थे। मेरी हर ज़रूरत वो बगैर कहे ही पूरी कर दिया करते थे। चच्ची के घर में हम रहते थे। चच्ची मुझे कुछ अच्छी नहीं लगती थी। पक्की उम्र में वो बेवा होने के बावजूद वो लड़कियों की तरह बनी सवरी रहती थी। रात गए तक लोग उनसे मिलने आते रहते थे। भाई ने कभी मुझे उनकी तरफ जाने ही नहीं दिया था। वो भी सिर्फ किराया देने पहली तारीख को उनके पास जाया करते थे। मैं बीए कर चुकी थी और भाई यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन दिलाने की कोशिश में लगे हुए थे। वो दिन बहुत खुशगवार थे। घर के काम से फारिग होने के बाद मैं सारा दिन रिसाले पढ़ने में गुजार दिया करती थी। उस दिन भाई वक्त से पहले ही ऑफिस चले गए थे और मुझे कह गए थे कि मैं 1 बजे तैयार रहूं, यूनिवर्सिटी जाएंगे एडमिशन के लिए। आयशा कुछ देर के लिए खामोश हो गई। उसके चेहरे पर दुख और कर्ब के गहरे रंग छाए हुए थे। आंसू भरी आंखों में शायद उस दिन के मनाजिर घूम रहे थे। नबील ने रिमोट कंट्रोल से टीवी ऑफ कर दिया था। वो तवज्जो से उसकी बातें सुन रहा था। दरमियान में वो कुछ भी नहीं बोला था। वो आयशा के दिल का गुबार निकाल देना चाहता था। जिन हालात में उनकी शादी हुई थी और उसके बाद जो सर्द और जालिम रवैया अम्मा जान ने इख्तियार किया हुआ था, उसने ना सिर्फ उसको परेशान और फिक्रमंद कर दिया था, बल्कि आयशा भी हर दम खौफजदा नजर आने लगी थी। उनकी शादी को 3 माह हो चुके थे, मगर इतने अरसे में दोनों किसी लम्हे भी खुशी से मुस्कुराए नहीं थे। आज पहली मर्तबा उसकी ज़बान के कुफर टूटे थे। उसकी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो गया था और वो कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली,
मैं तैयार होकर भाई का इंतज़ार करती रही। 1 बजे के बाद वक्त गुजरता गया और शाम के 7 बज गए। ऐसा पहली मर्तबा हुआ था, वरना भाई 5 बजे तक आ जाते थे और उस दिन तो वो जल्दी आने का कह गए थे। मुझे डर लगने लगा और घबराहट सी होने लगी। मैं 8 बजे तक खुद को तसल्ली देती रही, बहलाती रही, मगर उस दिन ज़मीन पर जैसे मेरे लिए अंगारे बिछ गए थे और बेड और सोफ़ों पर जैसे कांटे उगाए थे। ना मुझे बैठकर करार मिल रहा था और ना खड़े होकर सुकून। घबराहट बढ़ती जा रही थी। जब रात के 10 बज गए तो मेरे हवास साथ छोड़ गए। मैंने आंगन की दीवार में नस्ब उस दीवार को खोल दिया जो चच्ची के पोर्शन में खुलता था और भाई की गैर मौजूदगी में मैंने पहली मर्तबा ही खोला था। मैं चच्ची को आवाज़ें देती हुई उनके सहन में आ गई। वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। मैं कमरों में उन्हें देखती और पुकारती फिर रही थी। फिर वो एक कमरे से बरामद हुई, फुल मेकअप और मैरून पेटीकोट ब्लाउज में। वो जितनी नफरत अंगेज़ मुझे लगी थी, अगर मुझ पर वो मुसीबत उस वक्त ना पड़ी होती तो मैं कभी दोबारा उनकी शक्ल न देखती। मगर उस वक्त जैसी भी थी वो मेरे करीब थी। मैं भागकर उनके पास चली गई। अरे तुम, और इस वक्त तुम्हारा मुहाफिज कहाँ है? नामालूम उन्होंने तंज किया था यह सवाल। मैं कुछ समझी नहीं। चची, भाई सुबह से गए हुए, अभी तक नहीं आए। भाई ने इतनी देर कभी नहीं की। मैं बेख्तियारी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। क्या हुआ डियर? अंदर कमरे में से हाफ वाइट कोट पैंट में मलबूस शख्स उनके पास आकर बोला। उसकी भारी आवाज़ पर मैंने पलट कर देखा। दरमियानी उम्र का सेहतमंद आदमी था। उस अजनबी का इतनी रात गया। चच्ची के कमरे से निकलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। आ जाएगा अभी, आओ तुम अंदर चल कर बैठो। वो मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगी। चच्ची, ये कौन है? मेरे मुंह से बिला इरादा निकला। ये तुम्हारे चचा के दोस्त हैं। बहुत याद करते हैं उन्हें और जब ज़्यादा याद आती तो यहाँ चले आते हैं। फिर हम दोनों मिलकर मरहूम की बातें ताज़ा करते हैं। उन्होंने गमगीन नज़र आने की कोशिश की। मैं वज़ू करके आ रही हूँ। मैं वज़ू के बाद नमाज़ पढ़ने लगी और नामालूम कितनी ही नफलें मैंने भाई की जल्द खैरियत से आने की पढ़े और दुआ मांगती हुई पढ़ती गई। लेकिन बाज़ दफ़ा वो कुछ हो जाता है जिसका हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। भाई जो 1 बजे का कह गए थे, वो रात को 1 बजे एम्बुलेंस के ज़रिए स्ट्रेचर पर बेरूह वजूद के साथ घर में दाखिल हुए। मैं तो उसी वक्त बेहोश हो गई थी। जब होश में आई तो मेरा मुहाफिज, मेरा सहारा, मेरा भाई हमेशा के लिए रुखसत हो चुका था। चच्ची ने इन दिनों मेरी बहुत देखभाल की। वो हर दम मेरी दिलजोई में लगी रहती। उन दिनों उनके मेहमान भी बिल्कुल नहीं आ रहे थे। पड़ोसियों से चच्ची के ताल्लुकात ना होने के बराबर थे, इसलिए सारा दिन हम दोनों के सिवा कोई घर में ना होता। सफाई करने वाली मासी दोनों टाइम सफाई करके चली जाती। खाना चच्ची बहुत कम घर में पकाती थी, ज़्यादातर बाज़ार से आता था। भाई को मुझसे बिछड़े 2 माह का अरसा हो गया था। मेरे लिए तो दुनिया बहरान हो गई थी। ना मुझे अपने हाल पर इख्तियार रहा था और ना ही मुस्तकबिल की मुझे फ़िक्र रही थी। ज़मीन पर पड़े पत्थर जैसी बेमसरफ सी ज़िंदगी हो गई थी। मैं हर वक्त कुरान पाक की तिलावत के ज़रिए भाई की रूह को एहसास सवाब किया करती थी। एक शाम चच्ची फिर अपने असल रूप में वापस आ गई। आतिशी चमकता हुआ सूट, बालों में गजरे, चेहरे पर मेकअप। वो ऐसा ही भड़कता हुआ सूट लेकर मेरे कमरे में आई। आशी, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत सूट बनवाया है, चलो फटाफट पहन कर तैयार हो जाओ। वो मेरे करीब आकर बहुत प्यार से बोली। कहाँ जा रही हैं आप? मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी। देखो आशी, घर में मेहमान आने वाले हैं। जब से शाहबाज इस दुनिया से गया है तुम तो बिल्कुल ही पत्थर बन गई हो। अगर मैं तुम्हारी देखभाल नहीं करती होती तो तुम भी कब की मर चुकी होती। चलो उठो शाहबाज, नहाकर ये कपड़े पहन लो, फिर मैं तुम्हारा मेकअप कर दूंगी। ये दुनिया है, यहाँ लोग रोज़ मरते हैं, रोज़ पैदा होते हैं, मरने वाला चला जाता है। मगर ये दुनिया, यहाँ का वक्त, यहाँ के काम यूँ ही रवां दवा रहते हैं। मरने वालों के साथ मरा थोड़ी ही जाता है। चलो उठो शाबाश। वो मेरा हाथ पकड़कर उठाते हुए बोली। मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी। ज़िद नहीं करो, मैंने तुम्हारी वजह से 2 महीने खामोशी इख्तियार की, तुम्हारे दुख दर्द में काम आई, तुम्हारी हर तरह से ख्याल रखा। अब तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है तुम मेरी बात मानो और जो मैं कहूँ वो खामोशी से करते जाओ, इसलिए कि तुम्हारा अब इस दुनिया में मेरे सिवा कोई भी नहीं है। आखिर में उनका लहजा बहुत सख्त और हुक्मी हो गया था। उनका हर लफ्ज़ सच्चा था और इस बात से मैं भी अच्छी तरह वाकिफ़ थी कि मेरा अब उनके सिवा कोई भी नहीं है। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बाथरूम में धकेला। मैं कपड़े बदल कर बाहर आई तो वो निसार होने वाली निगाहों से मुझे देख रही थी। उनके बेहद इसरार के बावजूद मैंने ना मेकअप किया और ना ही बालों में गजरे लगाए। सादा सी चोटी बांधकर मैं सोफ़े पर बैठ गई। मुझे शिद्दत से उस वक्त भाई याद आ रहे थे और आंसू ज़ब्त के बावजूद आंखों से बह रहे थे। चची कमरे से चली गई थी। बाहर से मामूली से शोर की आवाज़ें आ रही थी, शायद मेहमान आ गए थे। उसी लम्हे मुस्कुराती हुई चची अंदर आ गई और मेरा हाथ पकड़कर उठाते हुए बोली,
چلو بھائی آشی، مہمان تم سے ملنے کے لیے بہت بے قرار ہے، لیکن میں تو کسی کو نہیں جانتی۔ ارے بھائی، ملو گی تو جان جاؤ گی، چلو آؤ۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر ڈرائنگ روم میں لے آئی اور اندر پہلا قدم رکھتے ہی میرا دماغ چکرا گیا تھا۔ میں سمجھ رہی تھی ان کے مہمانوں میں عورتیں اور لڑکیاں شامل ہوں گی، مگر وہ تو سب کے سب مرد تھے۔ سگریٹ اور سگار کے ساتھ پرفیومز کی خوشبوئیں وہاں بکھری ہوئی تھی۔ وہ ایسی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے کہ میرا دل چاہ رہا تھا زمین شک ہو جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ گھبراؤ نہیں، یہ سب اپنے ہی ہیں، چچی مجھے دھیرے دھیرے کانپتے ہوئے دیکھ کر بولی۔ چچی، میں اپنے کمرے میں جاؤں؟ آئے ہو ابھی، بیٹھو تو صحیح، جانے کی باتیں جانے دو۔ براؤن کوٹ سوٹ میں ملبوس آدمی صوفے سے اٹھ کر میرے نزدیک آ کر گنگناتے ہوئے بولا۔ وہاں بیٹھے سب مرد کہکے لگانے لگے تھے۔ اس آدمی کے اٹھتے ہی سب مرد میرے گرد جمع ہونے لگے تھے، اپنی ڈراؤنی آنکھوں سے مجھے گھورتے ہوئے۔ پہلے معاملات طے ہوں گے، اس سے پہلے آپ میری بیٹی کو چھو نہیں سکتے۔ چچی خود سے چپکی کھڑی آشی کو اپنے بازو کے گھیرے میں لے کر اپنے قریب کھڑے اس ہجوم سے بولی۔ کیوں وقت خراب کرتی ہو؟ ان میں سے وہی براؤن سوٹ والا جو مسلسل مجھے گھور رہا تھا جھلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں اتنی ناسمجھ بھی نہیں تھی جو ان کی گندی نگاہوں کو نہ پڑھ سکتی۔ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے چچی سے ہاتھ چھڑوایا اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ کر دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ اس وقت جو میری حالت تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ چچی کچھ دیر بعد آئی اور دروازہ بجاتی رہی، مگر میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر وہ دوسری مرتبہ مجھے کھانا کھانے کے لیے بلانے آئے، میں نے پھر بھی دروازہ نہیں کھولا۔ بھوک پیاس میری سب ختم ہو گئی تھی۔ بھائی کی جوان موت پر میں نے اتنے آنسو بہائے تھے کہ اب آنکھیں خشک بھی ہو گئی تھی۔ میں نے ساری رات دروازہ بند کر کے جاگتی رہی اور نماز پڑھ اپنے اللہ سے ذلت کی زندگی سے عزت کی موت کی دعائیں مانگتی۔ رات بہت خوفناک اور طویل تھی۔ اذان فجر کی پرایمان اور پرجلال صدا کے ساتھ ہی صبح کی سفیدی نے رات کی تاریکی کو نگل لیا تھا، مگر مجھے رات دن ایک طرح کے ہی لگ رہے تھے۔ باہر سے کام کرنے والی ماسی کے کام کرنے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ میں نے وال کلاک کی طرف دیکھا، اس میں 11 بج رہے تھے۔ میں نے جائے نماز طے کر کے رکھی اور صوفے پر بیٹھ کے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کروں تو کیا کروں۔ اس بڑی دنیا میں میرا کوئی نہ تھا جو اس وقت مجھے اس دوزخ سے نکالنے کی صحیح کرتا۔ میں نے دل میں پختہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر چچی میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں گی تب بھی میں ان کی بات نہیں مانوں گی۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھی کہ دروازے میں باہر سے چابی گھومنے کی آواز آئی اور اسی لمحے فریش سی شوق کلر کے سوٹ میں ملبوس چچی مسکراتے ہوئے اندر آ گئی۔ تم کیا سمجھ رہی تھی اس طرح کمرے میں بند ہو کر اپنی بات منوا لو گی؟ اس گھر میں جتنے بھی تالے لگے ہوئے ہیں سب کی ڈبل چابیاں میرے پاس ہیں۔ اگر میں تمہاری طرح ضدی اور ہٹ درم ہوتی تو رات کو ہی تم کو یہاں سے نکال لے جاتی، مگر میں زبردستی کی قائل نہیں ہوں، نہ تمہارا برا چاہتی ہوں اور نہ ہی تمہاری دشمن ہوں۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم عزت سے زندگی گزار دو۔ ان کے لہجے میں مٹھاس بھری تھی، مگر میں ان کا اصل چہرہ دیکھ چکی تھی۔ مجھ پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں کسی صورت ان کی بات نہیں مانوں گی۔ کر لو ضد، مگر یاد رکھو صرف شام تک 7 بجے تمہیں یہ مکان ہر حال میں چھوڑنا ہے۔ جہانگیر خان سے میں نے ایڈوانس لے لیا ہے، 1 ہفتے بعد وہ تمہیں یہاں واپس چھوڑ جائیں گے۔ اور سنو، اگر تم نے کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو… ان کا چہرہ اس وقت اتنا خوفناک ہو گیا تھا کہ میں جو انہیں نفرت سے دیکھ رہی تھی گھبرا کر نگاہیں جھکانے پر مجبور ہو گئی۔ وہ پرس سنبھالتی ہوئی شاپنگ سینٹر روانہ ہو گئی۔ شام 7 بجے تمہیں یہ مکان ہر حال میں چھوڑنا ہے۔ ان کے الفاظ میرے دماغ میں مسلسل گونج رہے تھے۔ میں بدحواسی سے کمرے سے نکل آئی۔ دونوں گیٹ باہر سے مضبوط تالے لگا کر بند کر دیے گئے تھے۔ باہر گلی میں کھلنے والی کھڑکی پر مضبوط لوہے کی جالی لگی ہوئی تھی۔ دیواریں بہت بڑی، زیادہ بلند تھی۔ فرار کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں بدحواسی پورے گھر میں چکراتی پھر رہی تھی۔ میں ابھی کوئی دوسرا فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ اچانک گیٹ کھول کر چچی اندر چلی آئی۔ مجھے کھڑکی کے پاس کھڑا دیکھ کر وہ ایک لمحے کو رکی، پھر فوراً بولی۔ میں ابھی اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی۔ جہانگیر کے دوست گھر کا ایڈریس معلوم کرتے پھر رہے تھے۔ میری اتفاق سے ان پر نگاہ پڑ گئی اور میں شاپنگ کا ارادہ ترک کر کے انہیں یہاں لے آئی۔ آؤ اندر آ جاؤ، وہ مجھ سے مخاطب ہونے کے بعد اپنے پیچھے کھڑے شخص سے بولی۔ اس لمحے نبیل کی آنکھوں میں بھی گزرے دن فلم کی مانند گھومنے لگے تھے۔ شکریہ، میں اب اجازت چاہوں گا۔ جہانگیر یوں بغیر بتائے ساتھ چھوڑ جائے گا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اس کے چہرے پر گہرے دکھ کی پرچھائیاں تھیں۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاؤ۔ جہانگیر کا تو ہمیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ پھر تم نے تو ابھی سنا ہے۔ جہانگیر کے سامنے اس طرح باہر ہی چلے جاتے کیا؟ چلو اندر چائے پی کر جانا، ورنہ جہانگیر کی روح کو تکلیف ہوگی۔ وہ اتنے خلوص و اپنائیت سے بے تکلف انداز میں اس سے مخاطب تھی کہ وہ جو ابھی اس گھر کا ایڈریس پوچھنے کے لیے جتنے بھی لوگوں سے ملا تھا، ان کی نگاہوں میں اس گھر کے بارے میں جو نفرت اور بیگانگی دیکھی تھی
उससे वो कुछ गलत अंदाज़ा लगा बैठा था, मगर उनके खलूस व अपनायत ने उसे अपनी सोच पर शर्मिंदा कर दिया था। वो सोफ़े पर उसके मुकाबिल बैठी उसके बिज़नेस के बारे में मालूम कर रही थी। वो जो जहांगीर से मिलने आया था, उसकी मौत की खबर उसके हवासों पर बिजली बनकर गिर रही थी। वो दोनों बेहतरीन दोस्त थे और बहुत अरसे तक साथ साथ भी रहे थे। वो उसके बारे में सब जानता था। मैं चाय बना कर लाती हूँ, तुम ज़रा आयशा को समझाओ। जहांगीर की जुदाई का असर इस लड़की ने हद से ज़्यादा लिया है। ना खाती है ढंग से, ना पहनने ओढ़ने का शौक़ इसे रहा है। मैं समझा समझा कर थक गई इस लड़की को, मगर मेरी सुनती ही नहीं। इसकी गिरती हुई सेहत देखकर मैंने आज़ाद कश्मीर जाने का प्रोग्राम बनाया है। अपने भाई के साथ आज 7 बजे फ़्लाइट है, मगर लड़की ने कल से खाना पीना बंद कर रखा है। ज़िद कर रही, नहीं जाऊँगी। मैं इसकी ज़िंदगी के लिए, इसकी सेहत के लिए सब जतन कर रही हूँ, मगर वो मानती ही नहीं। तुम ही समझाओ इसे। नबील से बहुत गमज़दा लहजे में बोली। फिर आयशा को आवाज़ें लगाने लगी। अस्सलाम वालेकुम। नबील लॉन के फीके रंगों वाले शलवार सूट और दुपट्टे में लिपटी आयशा को अंदर आते देखकर एहतरामन खड़े होते हुए बोला। वो खामोशी से एक तरफ आकर खड़ी हो गई थी। ये नबील मलिक है, जहांगीर के बहुत अच्छे दोस्तों में शुमार होते हैं। मेरा नहीं तो इनका कहना मान लो, ये समझ कर कि ये जहांगीर के दोस्त हैं। सच्ची उसकी तरफ देखकर नरमी से बोली। मेरे ख्याल में आपको इनकी बात मान लेनी चाहिए। ये आपकी सेहत की वजह से कह रही हैं। आपकी कोई बहन है? उसके तीखे लहजे पर वो बौखला गया था। सवाल भी बेमौका था। जी मेरी तो कोई बहन नहीं है, नबील हैरानी से बोला। फिर आप किसी की बहन के दुख को कैसे समझ सकते हैं? मैं समझा नहीं। आप अपने सवाल की वजाहत कर सकती हैं। नबील के लहजे में उलझन थी। अरे छोड़ो इसे, मेरा भी दिमाग खराब हो गया। मैं क्या किस्सा ले बैठी। चलो तुम नहा कर कपड़े बदलो, मैं इतने में चाय बना कर लाती हूँ। सोफे से उठकर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली। नहीं, मैं तुम्हारी मकारी और चालाकी का पर्दा ज़रूर चाह करूँगी। नबील साहब, ये जो औरत है, ये औरत के नाम पर गाली है। ये जो बाहर से इतनी चमकती दमकती नज़र आ रही है, इसके अंदर रूह इस कदर गलीज़ो भयानक है कि आप इसे देख लें तो इनसे नफरत हो जाएगी आपको। अरे फिर तुझे दौरा पड़ गया ऑल फॉल बकने का। बस खामोश हो जा। उसकी कमर पर हाथ मारते हुए बोली। बेटा तुम इसकी बातों का बुरा नहीं माना। जहांगीर की अचानक मौत ने इसे पागल कर दिया। काश मैं मर जाती, पागल हो जाती, तो आज मैं यूँ बकाव माल तो नहीं बनती। नबील साहब, ये औरत मुझे कश्मीर मेरी सेहत की वजह से नहीं, बल्कि मुझे कुछ अरसे के लिए किसी कमीने आदमी के साथ भेज रही है, जिससे उन्होंने एडवांस भी ले लिया है। आशी नबील से रोते हुए बोली। अरे झूठ। चच्ची बहुत गज़बनाक अंदाज में उसकी तरफ बढ़ते बोली, मगर नबील उठकर उनके दरमियान में हायल हो गया था। आयशा के बहते आंसू, उसके सफ़ेद चेहरे पर खौफ कुछ इस किस्म का था कि नबील ने फ़ौरन उठकर आयशा की तरफ बढ़ते उनके दोनों हाथ रोक दिए थे। खामोश रहिए आप, वो गुस्से से बोला। आप जो कुछ कह रही हैं मुझे मालूम नहीं वो दुरुस्त है या गलत, मगर बाहर मैंने कुछ लोगों से जब इस घर का एड्रेस मालूम किया तो जो रिमार्क्स मुझे सुनने के लिए मिली वो कोई भी शरीफ आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मुझे जहांगीर के आला करैक्टर के बारे में मालूम ना होता तो मैं एक लम्हे भी यहाँ नहीं ठहरता। आप मुझे सच सच बताइए, असल बात क्या है? असल नकल बात कुछ नहीं है, इस लड़की का दिमाग ख़राब हो गया। वो तेज़ लहजे में बोली। अच्छा मुझे इजाज़त दें। नबील कुछ फ़ैसला न कर पाया तो उसने यहाँ से जाने का फ़ैसला कर लिया। खुदा के लिए मुझे इस दोज़ख में छोड़कर ना जाइए, मैं आपकी हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी। आप मुझे यहाँ से निकाल कर किसी यतीम खाने में छोड़ दें या कहीं ले जाकर मुझे कत्ल कर दें, मगर मुझे यहाँ ना छोड़ कर जाइए। आयशा रोती हुई उसके कदमों से लिपट गई। बहुत कर चुकी ड्रामा, खड़ी हो। वो झटके से आगे बढ़कर उसकी मोटी सी चुटिया हाथ से पकड़कर खींचते हुए बोली। अरे अरे ये क्या कर रही हैं आप? नबील बेख्तियार उसकी चुटिया उनसे छुड़वाते हुए बोला। आपका इस कदर इश्तियाल अंगेज़ तशद्दुद, बाहर के लोगों से सुने गए रिमार्क्स और उनकी कही गई बातें सच महसूस होने लगी है। हाँ, जो कुछ तुमने सुना है सच है। अगर तुमको इससे इस कदर हमदर्दी हो रही है तो तुम इसकी कीमत चुका कर ले जाओ, मगर याद रखना मैं बहुत बुरी औरत हूँ और मेरे वसाइल भी बहुत है। अगर तुमने लड़की से ज़रा भी हमदर्दी जताई तो शर्म नहीं आती तुम्हें? औरत होकर औरत का सौदा करती हो। नबील गुस्से से बोला। शर्म? वो मुस्कुराई। बिजनेस में शर्म कैसी भाई? वो मुकम्मल तौर पर जामे से बाहर आ चुकी थी। नबील ने एक नज़र दोनों हाथों में चेहरा छुपाए रोती हुई आयशा पर डाली। वो उसे यूं छोड़कर जाना भी नहीं चाहता था और साथ ले जाने में भी दुश्वारी थी। वो क्या करे? इस सवाल ने उसे चकरा कर रख दिया था। अरे जल्दी जवाब दो, इतना सोचने वाले कभी अच्छे खरीदार नहीं बन सकते। वो जो गौर से नबील के चेहरे को देख रही थी तेज़ लहजे में बोली। उसी लम्हे नबील के दिल ने एक मजबूत फैसला कर लिया। क्योंकि ये फैसला बहुत मुश्किल और कठिन था, मगर एक अस्मत को नीलाम होने से बचाने के लिए, एक नस्ल, एक मुआशरा, एक इंसानियत को बचाने के लिए उसके दिमाग ने बर वक्त फैसला किया था। वो मुतमईन अंदाज में बोला। ठीक है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, मगर इन्हें बकाव माल की तरह नहीं लेकर जाऊंगा, बल्कि निकाह करके अपनी इज्जत बना कर ले जाऊंगा। फिर तुम्हारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा।
میں صرف اور صرف پیسے سے تعلق رکھنے والی عورت ہوں، اس کے علاوہ ہر تعلق سے میں لا تعلق رہتی ہوں۔ ان کی بھوری آنکھوں میں حریصانہ چمک ابھر آئی تھی۔ انہوں نے اپنی مطلوبہ رقم نبیل کو بتا دی اور نبیل نے فون کے ذریعے اپنے بزنس سیکرٹری اور 3 دوستوں کو نکاح خواہ کے ساتھ لے کر آنے کا کہہ دیا تھا اور سیکرٹری کو کیش رقم کا بھی۔ چلو ذرا نہا کر کپڑے بدل لو، آخر کو تمہارا نکاح ہو رہا ہے، میں بھی اتنے مہمانوں کے لیے چائے پانی کا انتظام کر لو۔ وہ مسکراتے ہوئے عائشہ کی طرف بڑھی جو نبیل کے فیصلے سے سکتے کسی کیفیت میں سسکیاں لے رہی تھی۔ رہنے دو، یہ اسی سوٹ میں میرے ساتھ جائے گی، اس گھر کی کسی چیز کو انہیں ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کا چائے پینا سب حرام ہے، اس لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبیل یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ 15 منٹ کے بعد اس کی واپسی ہوئی تو اس کے 2 دوست سیکرٹری، مینیجر اور ایک مولوی اس کے ساتھ تھے۔ اسی کمرے میں اس کا نکاح عائشہ سے ہو گیا تھا اور وہ اس کی چچی کو منہ مانگی رقم دے کر گمسم عائشہ کو ساتھ لے کر ہوٹل آ گیا تھا۔ ہوٹل میں آ کر اس نے سب سے پہلے گھر فون کر کے روہیل صاحب سے بات کرنا چاہی تھی، مگر وہ گھر پر نہیں تھے۔ عصمت بیگم کو اس نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ دوسرے دن روہیل صاحب کا فون اسے مل گیا تھا جنہوں نے اس کے جرأت مند فیصلے پر خوب تعریف کی تھی۔ اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اماں جان ثابت ہوئی تھی، جن کی صرف ایک ہی رٹ تھی کہ وہ عائشہ کو طلاق دے کر خاندان میں شامل ہو سکتا ہے، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے اسے خاندان سے دور رکھیں گی۔ ابھی تو شاید عصمت کی بگڑتی ہوئی حالت کے پیش نظر انہوں نے مصلحتاً اسے کراچی آ کر رہنے اور ان سے ملنے کی اجازت دے دی تھی، مگر وہ جانتا تھا یہ رعایت زیادہ دن چل نہ سکے گی۔ پھر اماں کا فیصلہ بھی وہ نہیں مان سکتا تھا اور نہ ماں باپ بھائیوں وغیرہ کو چھوڑ سکتا تھا، اور عائشہ کا ساتھ تو زندگی میں چھوڑنے کا تصور بھی اس نے نہیں کیا تھا۔ ہر وقت ڈری سہمی، خاموش خدمت کرنے والی عائشہ اسے بے انتہا عزیز ہو گئی تھی۔ بہت ضدی ہو لائبہ، آخر تم نے یہاں آ کر ہی سکون کا سانس لیا ہے، طوبیٰ اس کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ نامعلوم ایسا کیوں ہوتا ہے جو بات دل میں ایک دفعہ سما جائے یا کوئی بات دل کو نہ بھائے تو پھر میں اسے برداشت کر ہی نہیں سکتی۔ مری میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی، اس لیے میں نے انکل سے واپس چلنے کو کہا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی بالوں میں برش کرتی لائبہ سنجیدہ لہجے میں بولی۔ مری میں طوبیٰ کی ضد تھی وہ 2 دن اور رکے گی کیونکہ وہاں کا موسم بہت دلکش تھا، مگر لائبہ نے ناشتہ کرنے کے بعد ہی واپسی کی رٹ لگا دی تھی۔ حالانکہ ان سب نے ہی اسے روکنے کی کوشش کی تھی مگر وہ بالکل نہیں مانی تھی۔ اس کے سنجیدہ چہرے اور معمولی سی نم آنکھوں کا تاثر دیکھ کر افتخار صاحب نے فوراً ہی روانگی کا اعلان کر دیا تھا، مگر طوبیٰ کی شاپنگ کی وجہ سے وہ لوگ لنچ کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے تھے۔ آج وہ اسلام آباد میں تھی اور کل کراچی جانے کا ارادہ تھا۔ تم وہاں بہت اپسٹ رہی ہو، اس کی وجہ کیا تھی؟ میں نے ممی اور ڈیڈی سے بھی ذکر کیا تھا مگر انہوں نے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ وہم ہے تمہارا، میں تو وہاں جا کر بہت خوش تھی، لائبہ بالوں میں بینڈ ڈالتے ہوئے بولی۔ لائبہ، کبھی کبھی تم اتنی الجھی ہوئی کیوں محسوس ہوتی ہو، جیسے کوئی بے حد پیچیدہ نہ حل ہونے والا معمہ یا کسی مصور کی ادھوری تصویر کی طرح؟ اوہ خیریت تو ہے، آج بڑے مشکل لفظ بول رہی ہو۔ لائبہ حیرانی سے مسکراتی اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی۔ میں مذاق نہیں کر رہی ہوں لائبہ، اکثر میں نے تمہیں خود سے بیزار اور الجھتے ہوئے پایا ہے، سوچوں میں گم، اداس و تنہا۔ تم ہمیشہ ایسے ہی رہتی ہو اور مجھے یہ سوچ کر خود پر کتنا غصہ آ رہا ہے کہ میں نے بہترین دوست ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود کبھی تمہاری ذہنی حالت محسوس کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آج ایک دوست اور بہن سمجھ کر مجھے بتاؤ، تمہیں کیا دکھ ہے، کیا پریشانی ہے، کیوں تمہاری آنکھوں میں ہر وقت دکھ اور اداسیاں ڈیرے ڈالے رہتی ہیں؟ طوبیٰ اس کے چہرے کو باغور دیکھتی ہوئی آہستہ سے کہہ رہی تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ریلی اگر مجھے معلوم ہوتا تم مری سے واپس آنے پر اس قدر ہرٹ ہوگی تو سچ میں کبھی واپس نہ آتی۔ حالانکہ میں نے انکل سے کہا تھا میں اور ماما چلے جائیں گے مگر انکل نہیں مانے۔ لائبہ کے حسین چہرے پر شدید حیرانی کے تاثرات تھے۔ طوبیٰ ایک لاؤبالی اور بے پرواہ لڑکی تھی، ہر وقت ہلا گلا سیر سپاٹے کرنا اس کی ہابی تھی۔ اس وقت جس سنجیدگی اور رنجیدگی سے اس سے مخاطب تھی اس انداز تخاطب پر لائبہ کی حیرانی بے جا تھی۔ میں کوئی ہرٹ نہیں ہوئی، واپس تو بہرحال ہمیں آنا ہی تھا، 2 دن پہلے آ گئے، کوئی بات نہیں۔ تم بتاؤ کیا بات ہے؟ طوبیٰ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اپنائیت سے بولی۔ میں کہہ تو رہی ہوں تمہیں وہم ہو گیا ہے، مجھے بھلا کوئی دکھ اور پریشانی کیوں ہونے لگی؟ پہلے مجھے احساس نہیں تھا مگر جب سے اسامہ بھائی نے بتایا مجھے خود محسوس ہونے لگا ہے۔ کیا؟ اسامہ نے؟ لائبہ چونک کر بولی، اس کے چہرے پر ناگواری چھا گئی تھی۔ ہاں، انہوں نے ہی مجھے بتایا ہے تمہیں کچھ نفسیاتی پرابلمز ہے اور جس کی وجہ… پلیز طوبیٰ، اپنے سے غیر متعلق شخص کے ریمارکس میں قطعی برداشت نہیں کر سکوں گی۔ لائبہ اس کی بات قطع کر کے
कदरे गुस्से से बोली, लाइबा उन्होंने तो बहुत खलूस से मुझे मशवरा दिया कि मैं तुम्हारे अंदर भरे दर्द को शेयर करूं, वरना तुम इस कदर तनहा बर्दाश्त करते करते अब नॉर्मल हो जाओगी। और वो कौन होते हैं मेरे मुतल्लिक तुम्हें मशवरा देने वाले? मैं पागल हो जाऊँ या मर जाऊँ, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए फ़िक्रमंद होने की, वो तेज़ लहजे में बोली। इतना गुस्से क्यों हो रही हो? सामा भाई तो बेकसूर हैं। परसों तुमने अचानक ही नाश्ते के बाद इस्लामाबाद जाने की रट लगा दी थी और उसके बाद कमरा अंदर से लॉक करके बैठ गई थी। मैंने शॉपिंग के लिए तुम्हें कितना बुलाना चाहा मगर तुम नहीं आई तो मैं बहुत परेशान हुई और सामा भाई के साथ शॉपिंग के लिए चली गई। मुझे तुम्हारा ही ख्याल रहा और रास्ते भर मैं तुम्हारी ही बातें करती गई कि ना मालूम तुम्हें कभी कभी क्या हो जाता है जो तुम इतनी नर्म व एहसास तबीयत रखते हुए भी बहुत ज़िद्दी और अखड़ बन जाती हो। सामा भाई बोले, तुम्हारे अंदर कोई ज़बरदस्त कम्प्लेक्स है जो बाज़ दफ़ा शिद्दत इख्तियार कर जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि तुम बहुत पॉइजन वाले केस में अस्पताल में दाखिल हुई थी तो एक मरतबा ख़ुद को हलाक करने की कोशिश भी की थी। इसलिए उन्होंने मुझे मशवरा दिया था कि मैं तुम्हारे अंदर की कश्मकश को शायद ख़त्म कर सकूं। लाइबा सामा भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत हमदर्द व मुखलिस, तुम उन्हें गलत मत समझो। तूबा उसका हाथ थाम कर नरमी से बोली। ओह, लाइबा को लगा उसकी रूह में लगे जख्मों के टांके जैसे एकदम से खुल गए हो। अस्पताल में अपने ऊपर पड़ने वाली जुनूनी दौरे को वो बहुत अरसे तक ना भूल पाई थी कि उस वक्त शिद्दत जज्बात में नामालूम अपने माजी के तशना और तरसीदा और आग उस शख्स के सामने बेख्याली में पड़ गई थी। वो उसके माजी से बहुत हद तक आशना हो चुका है। इस एहसास ने उसे एक अरसे तक बेकलो मुजरिम बनाए रखा था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो ये बात भूल गई थी। मगर अभी तूबा की ज़बानियों से मालूम हुआ कि वो कुछ भी नहीं भूला था और इसलिए उस पर तूबा के ज़रिए हमदर्दी जताकर अपनी बड़ाई जता रहा था। तूबा प्लीज़ आइंदा उस शख्स का नाम मत लेना, नफ़रत है मुझे उस शख्स से, शदीद नफ़रत। दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगी। कवल ने आंखें खोली तो कुछ देर वो गायब दिमागी से छत पर लगे पंखे को घूरती रही। शायद वो इस वक्त किसी इंजेक्शन के ज़रिए असर थी जो खामोशी से चलते हुए पंखे को घूरे जा रही थी। चंद सेकंड बाद उस कमरे में मौजूद कुर्सी पर बैठी अखबार का मुतालिया करती नर्स की निगाह उस पर पड़ी तो वो खड़ी हो गई। शुक्र है खुदा का, डॉक्टर आपको होश आ गया, वो मुसर्रत से कहती हुई उसके करीब आ गई। मैं यहाँ कैसे आई सिस्टर? कौन लाया मुझे यहाँ? कवल, जो अब मुकम्मल होश में आ चुकी थी, उठकर बैठते हुए बोली। डॉक्टर, वहीं आपका कज़न जो आपको हैदराबाद से आते हुए रास्ते में ज़ख्मी मिला था, वहीं आपको यहाँ लेकर आए थे, नर्स ने मुस्कुराते हुए बताया। क्या वो कहाँ है? कवल करीब खड़ी नर्स का हाथ पकड़ कर बेताबी से बोली। वो अभी कुछ देर पहले ही गए हैं, बहुत परेशान थे वो आपकी तरफ से, मगर बड़ी डॉक्टर ने उन्हें समझाया कि ख़तरे की कोई बात नहीं, आप सिर्फ किसी खौफ की वजह से बेहोश हो गई हैं और जल्द ही होश में आ जाएंगी। आप अभी आराम करें, मैं डॉक्टर को इत्तला देकर आती हूँ। नर्स कमरे से चली गई। ऐ अजनबी इंसान, मेरे सीने में दिल बनकर धड़कने वाले, मेरे ख्वाबों को रंगीनियाँ और दिलकशी बख्शने वाले, तुम हर ख़तरनाक मोड़ पर मेरी इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ बनकर आ जाते हो, किसी खुदाई फ़ौजदार की तरह। मगर मुझे मेरी इन मेरान और दीद की तरसी हुई आँखों को क्यों प्यासा ही छोड़ जाते हो? मैं जो हर लम्हा हर आन तुम्हारी आमद की मुंतज़िर रहती हूँ, तुम आए भी और यूँ मुझे छोड़कर चले भी गए। अब न जाने तुमसे कब मुलाकात होगी। कवल बहुत आर्ज़दगी से सोच रही थी। उसकी आंखों में अनवर का चेहरा घूम रहा था। चंद कलियां निशात की चुनकर, मुद्दों महवे यास रहता हूँ, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। क्या बात है अज़मत, बहुत खामोश हो, मलूल हो। अम्मा जान वाइट चमकते दानों की तस्बीह ख़त्म करने के बाद चूम कर अपने गले में डालते हुए अज़मत बेगम से मुखातिब हुई, जो उनके नज़दीक बेड पर सर झुकाए बैठी थी। उनके खूबसूरत चेहरे पर दुख था। फूफो जान, आज मैं ना भतीजी बनकर आपके पास आई हूँ और ना बहू बनकर आपसे सवालों जवाब करने की हिम्मत व गुस्ताखी है मुझ में, बल्कि मैं आज एक माँ, एक भिखारन बनकर आपके पास आई हूँ। फूफो जान, खुदा के लिए नबील को माफ़ कर दें, उसने अपनी ख़ता की बहुत सज़ा पा ली है, वो बहुत कमज़ोर हो गया है, मुझे खदशा है उसे कुछ ना हो जाए। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं ज़िंदा न रह पाऊँगी। फूफो जान, नबील को माफ़ कर दें। वो उनका सफ़ेद झुर्रियों भरा हाथ आंखों से लगाकर रो दी। अज़मत, अल्लाह गवाह है, हमने कभी अपनी बहुओं और बेटियों में फ़र्क नहीं समझा। जिस तरह बेटियों से मोहब्बत की उसी तरह बहुओं को भी चाहा है, और तुम हमें ज़्यादा अजीज़ यूँ हो कि हमारे प्यारे भाई की बेटी हो, हमारी भतीजी हो। तुम्हारा दुख परेशानी हम पर ऐसे ही गुजरती है जैसे तुम महसूस करती हो। फिर फूफो जान, नबील को आप माफ़ क्यों नहीं कर देती?
عظمت، اولاد کی اولاد بہت عزیز ہوتی ہے. نبیل کی فکر تو مجھے بھی ہے، اس کا خیال مجھے بھی رہتا ہے، مگر اس نے خاندان کے ناموں پر گندا داغ لگا دیا ہے. خاندان سے باہر شادی کی ہے دوسرے اس لڑکی سے جس کی پرورش اس عورت کے ہاں ہوئی جو شرافت و پاکیزگی، اطوار و اخلاق سے دور، نجاست و غلاظت کا ڈھیر ہے. ایسی عورتوں کے نام ہمارے خاندان کے مردوں کی زبان پر آ ہی نہیں سکتے. پھر ایک ایسے وجود کو ہم اپنے خاندان میں کیسے شامل کر کے اپنی آنے والی نسل کو داغدار کر سکتے ہیں؟ نبیل کے لیے اس گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. دادی کی شفقت اور محبت بھی اس کی راہ تک رہی ہے، مگر شرط وہی ہوگی کہ پہلے اسے اس لڑکی کو طلاق دینی ہوگی. خاندان میں شریف و باحیا لڑکیاں بہت ہیں، وہ جس کسی کی بھی آرزو کرے گا ہم پوری کریں گے، مگر جو وہ چاہ رہا ہے وہ کبھی پورا نہیں ہوگا. نرم لہجے میں بات کرتے ہوئی اماں جان کا لہجہ گرجدار ہو گیا تھا. ان کا سرخ و سفید چہرہ آگ کی طرح دیکھنے لگا تھا. عظمت بیگم جو کچھ دلائل دے کر انہیں قائل کرنے کا سوچ رہی تھی، ان کا موڈ بگڑتے دیکھ کر خاموش ہو گئی. پھر اپنی ساڑی کے پلو سے آنکھیں صاف کرنے لگی. پھپھو جان، اس لڑکی کی پرورش اس عورت نے نہیں کی، وہ تو بہت شریف ماں باپ کی بیٹی ہے. مجبوری میں اس کا بھائی اس مکان میں اسے لے کر کرائے پر رہنے لگا تھا، جبکہ اسے بھی بعد میں معلوم ہوا کہ وہ عورت جو رشتے میں اس کی دور کی چچی لگتی تھی خراب چال چلن کی ہے. اس نے عائشہ کو اس عورت سے ملنے کو منع کر دیا تھا اور خود بھی کوئی تعلق اس سے نہیں رکھا تھا. یہ تو اچانک ہی اس کی موت نے عائشہ کو اس کے چنگل میں پھنسا دیا تھا. عظمت بیگم نے نبیل کی زبانی سنی ہوئی باتیں جو اماں جان پہلے سن چکی تھی انہیں سنا دی کہ شاید ان کا دل پتھر دل جو کچھ پگھل جائے، مگر اماں جان خاموشی بیٹھی رہی جیسے چٹان ہو. السلام علیکم اماں جان. چچی جان بھی موجود ہیں. السلام علیکم چچی جان. اسامہ مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا. لائٹ اسکائی کلر شلوار سوٹ میں اس کا وجیح پرسنالٹی فریش لگ رہی تھی. وعلیکم السلام. کب آئے اسلام آباد سے؟ اماں جان کے بعد وہ سلام کا جواب دیتے ہوئے بولی. اسامہ ان کے نزدیک ہی بیٹھ گیا تھا. پرسوں آیا تھا سنڈے کو. گھر پر نہیں آئے؟ آپ کے چچا بہت یاد کر رہے ہیں. ان کو اپنی سرگرمیوں سے فرصت ملے تو کسی کی یاد انہیں آئے. اسلام آباد بھیجا تھا کہ نزت نگت کے سسرال میں لڑکیاں بہت اچھی ہیں، کسی کو پسند کر آئے تو شادی کر کے سکون کا سانس لیں. مگر ان کی قسمت دیکھو، یہ وہاں گئے تو لڑکیاں کراچی آئی ہوئی تھی، انہیں ملی ہی نہیں. ان کے لیے اس سے بڑی مسرت کی کیا بات ہوتی؟ خوشی خوشی خبر سنا دی آ کر کہ لڑکیاں وہاں نہیں ہیں. کہتے ہیں نا کہ جیسی روح ویسے فرشتے، دل کے اندر کھوڑ تو ان کے یہیں سے تھا، باپ کی وجہ سے زبردستی گئے تھے. سامہ کے بولنے سے پہلے ہی اماں جان ناراض لہجے میں بولی. اگر لڑکیاں نہیں ملی تو اماں اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ مسکرا کر بولا. نہیں، سارا قصور تو ہماری محبت کا ہے. نہ تمہارا سیرا دیکھنے کی خواہش دل میں ہوتی، نہ تم یوں بہانے بنا کر ہماری محبت کا مذاق بناتے. اماں تیز لہجے میں بولی. اماں پلیز آپ ایسی باتیں نہ کیا کیجیے. آپ اچھی طرح جانتی ہیں میں کتنا چاہتا ہوں آپ کو. سامہ ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے بولا. ان کی اس صدا پر وہ ہمیشہ ہی اپنا غصہ بھول جایا کرتی تھی. اس وقت بھی ایسا ہی ہوا. اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکراتے ہوئے باتیں کر رہی تھی. فوزیہ بیگم ملازمہ کے ہمراہ چائے اور دیگر لوازمات لے کر آئی تھی اور پلیٹ میں رکھ کر سرو کر رہی تھی. در حقیقت اماں جان کو اپنی پوتیوں اور پوتوں میں بہت زیادہ محبت اور دلی انسیت اسامہ سے ہی تھی، کیونکہ وہ اسد صاحب کی شادی کے بہت عرصے بعد بڑی منتوں مرادوں سے پیدا ہوا تھا اور پھر وہ 1 ماہ کا ہوا تھا تو فوزیہ بیگم کو گردوں کی شدید تکلیف کے باعث 2 ماہ اسپتال میں رہ کر آئی تھی. اس عرصے میں اماں جان نے ہی اسے سنبھالا تھا. چچیوں اور پھوپھیوں کی خواہش کے باوجود اس کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی. اتنے عرصے میں وہ بھی ان سے پوری طرح مانوس ہو گیا تھا. فوزیہ بیگم کے تندرست ہونے کے بعد بھی وہ زیادہ تر انہی کے پاس رہتا تھا. سب کی محبتیں بھی اسے بلا کسی امتیاز کے ملی تھی. اسی لیے بچپن سے ہی وہ بہت ضدی و خود سر اپنی منمانے والا ہو گیا تھا. اس کی ضد اور ہٹ دھرمی کے آگے اماں جان نے ہمیشہ ہی ہتھیار ڈالے تھے. یہ اور بات تھی کہ اب وہ جوان اور سمجھدار ہو گیا تھا تو کچھ اماں کے وہ بھی ماننے لگا تھا. صاحب، رستم صاحب کا فون آیا تھا. فضل موبائل لیے ان کے نزدیک چلا آیا. یہ آدمی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتا، گھر میں بیٹھنا اسے تمہارا گوارا نہیں ہے. اماں بڑبڑائی. وہ مسکراتا ہوا فضل سے موبائل لے کر باہر ٹیرس کی طرف بڑھ گیا. کہیں سورج کی ذرے سے ٹھنی ہے، کہیں تتلی سے بھنورا لڑ گیا ہے، پڑی ہے اوس رشتوں پر کچھ ایسی، لہو کا رنگ پھیکا پڑ گیا ہے. بی بی جی، آپ کو ماما بیگم بلا رہی ہیں، کھانا کھا لیں. لائبہ ٹیرس پر کھڑی سامنے جھاگ اڑاتے سمندر کے پانی کو دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھیں پانی کو دیکھ رہی تھی مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا. وہ اپنی سوچوں میں اتنی مستغرق تھی کہ رشیدہ کی اپنے کمرے میں آمد کو محسوس نہ کر سکی. بی بی جی، آپ کو ماما بیگم بلا رہی ہیں، وہ ڈائننگ ٹیبل پر انتظار کر رہی ہیں آپ کا.
रशीदा उसके नज़दीक आकर बोली, मुझे भूख नहीं है, मामा से कह दो खाना खा लें। लाइबा ने उसकी तरफ देखकर आहिस्ता से कहा और कमरे में आकर बेड पर औंधी लेट गई। रशीदा चली गई थी। आखिर आप मुझसे इतना भाग क्यों रही हैं? इस गुरेज की कोई तो वजह होगी। उसके कानों में उसामा की शोख आवाज़ गूंजी और मरी के लॉन का मंजर वाज़ेह होता चला गया। मैं ऐसा क्यों करने लगी? गलत फहमी है आपकी। वो कुछ फासले पर खड़े ब्लू जीन्स और पर्पल कलर की टी शर्ट में मलबूस उसामा की तरफ देखकर बोली, मगर उसे अपनी निगाहें फ़ौरन ही झुकानी पड़ी थी। उसकी शोख आंखें भरपूर अंदाज में उसके चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। अगर ये हकीकत है तो आप मेरी तरफ देख कर कहिए, मुझे यकीन आ जाएगा कि मैं गलत फहमी में मुब्तला हूँ। वो अपनी आदत के बरक्स कदरे शोख और रोमांटिक मूड में था। मरी का गुलाबी मौसम भी बहुत दिलकश था। आसमान पर बादल छाए हुए थे जिससे माहौल में हल्का अंधेरा सा फैल गया था। मस्त चलती हुई हवा से वहाँ लगे फूल पौधे झूम रहे थे। खुबानी, सेब और आलूचों की खुशबू हर सू फैली हुई थी। तूबा, शाहरुख, मामा वगैरह अंकल के दोस्त के यहाँ गए हुए थे। उसने जाने से इनकार कर दिया था। उनके जाने के बाद वो कमरे से निकल आई थी। उस बंगले में आकर उस पर अजीब सी वहशत तारी हो गई थी। वो बेमकसद ही पूरे बंगले को देख चुकी थी। वहाँ के दरो दीवार को छू कर नामालूम किस लम्स को महसूस करने की कोशिश कर रही थी। 1 घंटा वो यूं ही ज़ाया करने के बाद थक हार कर लॉन में बनी संगी कुर्सी पर बैठ गई। अभी उसे बैठे 5 मिनट हुए थे कि सामने का मेन गेट खुला और ब्लू कार में उसामा अंदर आ गया। उसे देखकर वो उठकर कमरे की तरफ जाने लगी थी कि वो उसका रास्ता रोककर सवाल कर बैठा, प्लीज़, मैं ऐसी हरगिज़ नहीं हूँ जैसा आप मेरे साथ सलूक कर रहे हैं। मुझे ऐसी बेहुदा बातें बिल्कुल पसंद नहीं। उसके बेतकल्लुफ़ अंदाज ने उसे गुस्से से रुख कर दिया था। मैं भी वैसा नहीं हूँ जैसा आप मेरे साथ सलूक कर रही हैं। मैं किसी बदतमीज़ी की जसारत कर भी नहीं सकता। उसने खूबसूरती से उसके लफ्ज़ उसी को लौटा दिए। रास्ता छोड़िए मेरा। वो सुरमई दुपट्टा सर पर उड़ते हुए बोली जो हवा से उड़ा था। पहले आप मुझे इस गुरेज की वजह बताइए, फिर आप जा सकती हैं। वो मजबूत लहजे में बोला, आपके इस फजूल सवाल का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। उसी चौकर बोली, लेकिन मुझे तुम्हारे इस गुरेज ने बहुत सारी खुशफहमियों के समंदर में फेंक दिया। उसामा मलिक की शख्सियत के गिर्द खिंचे सिंगे असार को रेजा रेजा कर दिया। मैं उसामा मलिक जो खुद को मजबूत और चट्टानी दिल रखने वाला समझता था, तुमने मुझे रेजा रेजा कर दिया है। आज एक आम आदमी और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। मैं तिशा फरियाद उठाए तुम्हारी जुस्तजू में ख्वार हो रहा हूँ और तुम क्या है? ये फजूल सवाल है। मुझे वहशतों के समंदर में फेंक कर तमाशा देख रही हो। मेरा सुकून बर्बाद कर दिया तुमने। उस पर एकदम ही जुनूनी दौरा पड़ गया था। लाइबा फक चेहरा लिया उसकी शक्ल देख रही थी जो आपसे तुम पर उतर आया था। उसके जज्बों से तो वो आगाह हो चुकी थी और वो खुद उसे मौका नहीं देना चाहती थी इजहार का, मगर अब उसने मौका देख लिया था। मगर जिस जुनूनी अंदाज में उसने इजहार किया था, उसने लाइबा को शल करके रख दिया था। मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें और ना ही मैंने आपको गाइड किया। आप मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। बावजूद कोशिश की लाइबा अपनी आवाज़ की लर्जिश पर काबू न पा सकी। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, बल्कि तुम्हें अब इस राह पर मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। मेरे लिए ये राह बहुत पुरखतर और मुश्किल साबित होगी, मगर हम सफ़र मन पसंद हो तो मुश्किलात कुछ सहल हो जाती हैं। उसकी तरफ झुककर बोला, जवाब दो मेरी बात का, मगर याद रखना मैं हाँ सुनने का आदी हूँ। नहीं, मैं आपके खुद साख्ता जज्बों की पजीराई ना आज करूँगी और ना कल, और आप मुझसे ज़बरदस्ती हाँ नहीं करवा सकते, समझे आप? वो अपनी बात कहकर रुकी नहीं थी, भागती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई थी। लाइबा मामा की परेशान कुन आवाज़ सुनकर चौंक कर उठ बैठी थी। क्या बात है बेटा, अब खाना क्यों नहीं खा रही हैं? भूख नहीं लग रही है मामा। वो दोनों हाथों से अपने बिखरे बाल समेटते हुए बोली। सुबह नाश्ते में भी सिर्फ 1 स्लाइस और चाय ली थी। तबीयत तो ठीक है ना? इतनी फ़िक्र मत किया कीजिए आप मेरी, कुछ नहीं हुआ मुझे। कल से यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दें। उसके नज़दीक बैठते हुए बोली। मामा आप नहीं होती तो मेरा क्या होता, कहाँ जाती मैं? वो उनके शाने से सर लगाकर गलोगीर आवाज़ में बोली। लाइबा मेरी जान, कितनी दफ़ा समझाया तुम्हें, मत उल्टे सीधे सवालों को जहन में जगह दिया करो। जब अल्लाह मियाँ अपने बंदे को पैदा करता है तो उसकी ज़िम्मेदारी भी लेता है। हम नाफरमानो खुदगर्ज बंदे तो उसकी तरफ से बेपरवाह गाफिल हो जाते हैं, मगर वो गफूर रहीम हमें नहीं भूलता। चलो खाना खा लो, फिर इफ्तिखार साहब की तरफ चलते हैं। आपका दिल भी बहल जाएगा और उनकी शिकायत भी दूर हो जाएगी कि इस्लामाबाद से आने के बाद हम उनसे मिलने नहीं गए। सुबह आप सो रही थी तो तूबा का फ़ोन भी आया था। सियासत में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं बरखुरदार। हमारे मुल्क की 50 साल तारीख में सियासत का रंग एक ही रहा है, सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं। रुस्तम जमान ट्राली से चाय का कप उठाते हुए बोले।
لیکن سر یہ کیسی سیاست ہے جس میں ملک کو سنوارنے کے بجائے بکھرنے کے اصول اپنائے گئے ہیں؟ بد امنی، افراتفری ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، مہنگائی، بے روزگاری، ڈاکے، چوریاں روز کا معمول بن گئی ہے، اخبارات سیاسی منڈیاں بن چکے ہیں جس میں سیاسی لیڈروں کی ایک دوسرے کے خلاف توسبانہ باتیں، اشتعال انگیز بیانات واضح طور پر چھاپے جاتے ہیں۔ ساما سنجیدگی سے بولا، چلتا ہے یہ سب، سیاست میں چلتا ہے۔ آپ ابھی سیاست میں نئے آئے ہیں اس لیے اس کے اسرار و رموز سے واقف نہیں ہیں۔ یہاں ایک چہرہ رکھنے والوں کے ہزاروں روپ ہوتے ہیں، واقف ہو جائیں گے آپ بھی اس دنیا کے اسرار سے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، پھر آپ کھڑے ہو رہے ہیں نا اگلے ماہ ہونے والے الیکشن میں؟ سائرہ بہت دیر سے خاموش بیٹھی چائے پی رہی تھی، ساما کی طرف دیکھ کر بولی، نہیں، میں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ یہ فیصلہ تو آپ کو کرنا ہی ہوگا، آپ تو ہماری پارٹی کے ہر دل عزیز لیڈر ہیں۔ رستم زمان بے چینی سے بولے، باضابطہ تو میں نے ابھی آپ کی پارٹی جوائن کی نہیں ہے۔ ویسے بھی سر، میں ایک آزاد طبیعت رکھنے والا بندہ ہوں، کسی کے انڈر تو میں کام کر ہی نہیں سکتا۔ جلاؤ گھیراؤ اور لوٹو مارو کی سیاست پر میں یقین نہیں رکھتا۔ میں ہر کام فیئر کرنے کا عادی ہوں۔ میرا منشور بھی صرف اور صرف ملک کی خوشحالی اور عوام کی خدمت ہے۔ میں صرف ایک چہرہ اور ایک روپ رکھنے والا شخص ہوں، مجھ سے یہ ہزاروں روپ نہیں بدلے جائیں گے۔ وہ ٹی کپ ٹرالی پر رکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا، ہمارے ملک کو ایسے ہی سیاستدانوں کی ضرورت ہے ینگ مین۔ آپ ہماری پارٹی جوائن کریں، بالکل اپنی خواہشات کے مطابق پائیں گے ہمارے منشور اور اصولوں کو۔ سوچوں گا سر، ابھی فی الحال تو میرے فادر پہ یہ کبھی پسند نہیں کریں گے کہ میں الیکشن لڑوں، اور پہلے ہی بہت خلاف ہے وہ، اور جلد سے جلد میری شادی کر کے بیرون ملک بھیجنے کا پروگرام بنائے بیٹھے ہیں۔ پہلے مجھے اس پروگرام سے چھٹکارا پانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ شادی تو ایک خوشگوار بات ہے، مگر الیکشن سے پہلے مت کر لینا۔ ہماری نیک دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تمہاری آمد کے منتظر رہیں گے شدت سے۔ اوکے سر، اب مجھے اجازت دیجیے۔ وہ کھڑا ہو کر بولا اور پھر ان سے ہاتھ ملا کر باہر نکل گیا۔ اس کی کار تیزی سے ہوٹل مون لائٹ کی طرف بڑھ رہی تھی، ہونٹوں پر اس کے دلکش مسکراہٹ تھی۔ توبہ کہاں ہے تمہاری دوست؟ تم کہہ رہی تھی تم نے پارٹی دی ہے ان کو۔ آتی ہوں گی ابھی، تم بیٹھو۔ توبہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، پارٹی کے لیے تو لان وغیرہ اچھے لگتے ہیں، تم نے یہ کیبن کیوں بک کروایا ہے؟ پارٹی میں نے نہیں بلکہ میری دوست راہیلہ نے ارینج کی ہے اپنی انگیجمنٹ کی خوشی میں۔ یہ کیبن بہت خوبصورت ہے، بالکل پرسکون۔ توبہ سامنے گلاس وال شیشے کی دیوار سے نظر آتے سمندر کی لہریں بکھیرتے پانی پر نظر ڈالتی ہوئی بولی، سمندر اتنا ہی پسند ہے تو ہمارے گھر پر آ جاؤ رہنے کے لیے، صبح و شام تمہاری نگاہوں کے سامنے رہے گا۔ لائبہ ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی نکالتے ہوئے بولی، السلام علیکم۔ توبہ کے جواب دینے سے قبل ہی دروازہ کھول کر اس نے سلام کیا تھا۔ لائبہ نے حیرانی سے پلٹ کر دیکھا، ہنی کلر کے پینٹ کوٹ پہ مسکراتا ہوا ساما سامنے کھڑا تھا۔ گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ٹیبل پر لڑک گیا تھا۔ اس کی مشکوک نگاہوں نے توبہ کی طرف دیکھا، اس نے فوراً ہی نگاہیں جھکا لی تھی۔ تھینک یو سسٹر، تمہاری دوست لان میں آ گئی ہے؟ وہ توبہ سے مخاطب ہوا۔ اسامہ بھائی، زیادہ دیر نہ لگے، ٹائم کم ہے ہمارے پاس۔ توبہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی، اوکے۔ توبہ کو کھڑے ہوتے دیکھ کر لائبہ بھی کھڑی ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی چلتے ہوئے دروازے سے باہر نکل جانا چاہا، مگر آگے بڑھ کر اسامہ نے اس کا بازو پکڑ کر روک لیا۔ آپ وہاں نہیں، یہاں مہمان ہیں، بازو چھوڑیے میرا۔ لائبہ جو صورتحال سے حواس باختہ ہو گئی تھی، حیرت اور دکھ کے شدید جھٹکے سے گزر کر تیز آواز میں بولی، یہ میں نے چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا۔ وہ اس کے شعلے برساتی سبز آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اطمینان سے بولا، ساما ملک صاحب، میں کوئی کمزور لڑکی نہیں ہوں جو… نہیں، مجھے معلوم ہے آپ کمزور لڑکی نہیں ہیں، مجھ جیسے اسٹون مین کو دیوانہ بنا دینے والی لڑکی بھلا کمزور کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اس کی بات قطع کر کے سنجیدگی سے بولا، گویا وہ اس کے سامنے اعتراف کر رہا تھا، مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا توبہ مجھے دھوکہ دے سکتی ہے۔ اس سے بازو چھڑا چکی تھی، گلوگیر آواز میں بولی، توبہ کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہاں لانے میں وہ بہت مشکل سے راضی ہوئی ہے۔ دراصل میں اس کہانی کا اختتام چاہتا ہوں، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ سے براہ راست بات کی جائے، چنانچہ آپ سے بات کرنے کے لیے مجھے یہ چکر چلانا پڑا۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ صرف تھوڑی دیر یہاں بیٹھ کر میری بات سن لیں۔ وہ بہت نرم لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا، آپ اس قدر خود غرض ہوں گے مجھے معلوم نہ تھا۔ آپ نے صرف اپنی خواہشات کے اصول کی خاطر ایک دوست کا اعتماد توڑ دیا، اور میری نگاہوں میں بھی آپ کے لیے عزت و احترام ختم ہو چکا ہے۔ میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہاں رکنا اپنی توہین سمجھتی ہوں، میں جا رہی ہوں۔ لائبہ غصے میں بھری ہوئی کسی سرکش لہر کی طرح دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ لائبہ پلیز مجھے غلط مت سمجھو، وہ آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑتے ہوئے بولا، آپ بار بار مجھے چھو کر کیا احساس دلانا چاہتے ہیں کہ آپ مجھے زبردستی حاصل کر لیں گے؟
शट अप, सामा गुस्से से चीखा था और इतनी ही तेज़ी से उसका हाथ उठा था, मगर लाइबा के चेहरे तक पहुंचने से कबल ही वो मुश्किल से खुद पर काबू पा चुका था। हाँ, मारे मुझे, हाथ क्यों रोक लिया? मर्द के पास होता ही क्या है अपनी ताकत के सामने दूसरों को हकीर समझने के अलावा? प्लीज़ प्लीज़ मुझे गलत मत समझो, मुझे समझने की कोशिश करो। तुम्हारी इज़्ज़त मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। अगर मेरी नीयत ख़राब होती तो मैं तूबा को दरमियान में डालने की हरगिज़ बेवकूफ़ी नहीं करता। मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो बुरी तरह ज़िद हो चुका था। ना मुझे आपकी बात समझने की ज़रूरत है और ना ही मुझे इससे दिलचस्पी है। वेटर दरवाज़ा नॉक करके चाय और लवाजमात से भरी ट्राली लेकर अंदर आ गया था, जिसकी वजह से लाइबा को खामोश हो जाना पड़ा। आइए पहले चाय पी लें। वेटर के जाने के बाद उसामा मुस्कुराते हुए उससे बोला, नहीं, मैं घर जाना चाहती हूँ। लाइबा बदस्तूर गेट के पास ही खड़ी हुई थी। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप घर चली आइए, वो कुर्सी पर बैठता हुआ शोखी से बोला। क्या मतलब? लाइबा उसके जुबानी अंदाज पर चौंक कर बोली। मतलब ये कि हर माशरे में लड़की का असल घर उसके शौहर का घर होता है और मैं आपको ये घर फराहम करना चाहता हूँ, यानी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। उसने मुश्किल बात बहुत आराम से कह दी थी। लाइबा के वहमो गुमान में भी ना था कि वो अपना मुद्दा इतनी आसानी से बयान कर देगा, इतनी आसानी और इत्मीनान से इतनी मुश्किल बात कह देगा। वो सुनती खड़ी रह गई थी। मैं बहुत रिजर्व प्रैक्टिकल बंदा हूँ। आज से कुछ अर्सा पहले मैं मोहब्बत पर बिलीव नहीं करता था, मगर आज मुझे एतराफ़ है कि ये एक बेसाख्ता जज्बा है, हर गर्ज और मफाद से बालातर। मैं जो इन जज्बों से भागने वाला शख्स था, नामालूम किस तरह तुम्हारी कोई सादगी मुझे घायल कर गई और मैं बहुत खामोशी से लुट गया। आम आशिकों की तरह मुझे लंबी लंबी डेंगे मारनी नहीं आती और ना ही मैं अशार के ज़रिए हाल दिल बयान कर सकता हूँ। सो मैंने बात वाज़ह कर दी है। उसने ठहर ठहर कर अपनी बात मुकम्मल कर दी थी, जिस बात को कहने के लिए वो पिछले 2 माह से प्लान बना रहा था, मगर कोई लफ्ज़ वो इंतखाब नहीं कर पा रहा था। इस वक्त वो खुद हैरान था कि किस आसानी से वो अपना मुद्दा बयान कर बैठा था, बगैर किसी झिझक और घबराहट के। वो अंदरूनी तौर पर भी उतना ही खुद एतमाद था जितना ज़ाहिरी तौर से था। ये आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपसे शादी करने पर रज़ामंद हो जाऊंगी? क्यों? क्या खराबी या कमी है मुझ में? वो एक लम्हे को ब्लू कलर के शलवार सूट में मलबूस सफ़ेद गुलाबी चेहरे को देखकर इत्मीनान से बोला। हालांकि अंदर उसके ज़बरदस्त तोड़ फोड़ मच गई थी। उससे उम्मीद नहीं थी कोई लड़की उसे मुस्तरद भी कर सकती है। ये काम तो वो आज तक बहुत शौक़ से करता आया था, मगर अभी आपने अभी तो कहा है ये जज्बे बेसाख्ता होता है, हर मफादो घर से पाक। अब ये ज़रूरी तो नहीं जिस जज्बे ने आपके अंदर जन्म लिया वही जज्बा मेरे अंदर भी परवरिश पाए। मैं आपके लिए ऐसा कोई जज्बा महसूस नहीं करती और ना ही मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। वो उसकी तरफ देखते हुए बहुत सफाकी से कह रही थी। इस वक्त लग रहा था वो मासूम सी गुमसुम रहने वाली लाइबा नहीं, बल्कि कोई जालिम दूसरों को दुख और तकलीफ़ पहुँचाकर खुश होने वाली कोई शैतानी रूह। लंबा खूबरू ताकत पर वजूद रखने वाला उसामा बुरी तरह चकरा कर रह गया था। तुम मजाक कर रही हो? प्लीज़ कह दो ये मजाक है। वो बेचैनी और इज़्तिराब में कुर्सी से खड़ा हो गया था। आप तो बहुत प्रैक्टिकल बंदे हो उसामा मलिक। फिर आपने ख्यालों और ख्वाबों में रहने वाले रोमान पसंद खपती लोगों की तरह खुद ब खुद ये अक्स क्यों कर लिया कि मैं आपकी हाँ में हाँ मिलाऊंगी? मैं आपसे शादी हरगिज़ नहीं कर सकती। उसके लबों पर बड़ी कातिल मुस्कुराहट थी। उसामा के इर्द गिर्द आतिश फिशां फट रहे थे। उसकी निगाहों में आज वो सारे चेहरे बहुत बड़ी फतह का जश्न मनाते, उसका मज़ाका उड़ाते नज़र आ रहे थे। उसने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बेशुमार लातादार लड़कियों की बेइज्जती की थी। किसी को भी ज़रा खातिर में लाना या निगाह डालना वो अपनी अना के ख़िलाफ़ समझता था। कितनी ही लड़कियों ने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी सिर्फ उसकी तंद मिजाजी की वजह से, मगर उसे कभी कोई मलाल या पछतावा नहीं हुआ था। वह यूसुफ सानी बना, मासूम दिलों को रोंदता हुआ किसी फाते की तरह आगे ऊपर और ऊपर की जानिब बढ़ता रहा था। मगर आज वो बहुत बुलंदी से गिरा था, इतनी बुलंदी से कि उसे अपने वजूद की किरचियाँ भी यकजा नज़र नहीं आ रही थी। उसे आज महसूस हुआ था कि चाहे जाने और ठुकराए जाने में कितना फ़र्क है। उसके सामने खड़ी वो हसीन तरीन गुलाबी चेहरे और गरीन आंखों वाली मासूम लड़की उन तमाम टूटे हुए दिलों की बददुआओं का नतीजा थी जिन्हें उसने ठुकराया था। उसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। वो हमेशा बगैर मुकाबले के जीतता आया था, मगर आज उस लड़की से उसने शिकस्त का मज़ा चखा था जो उसकी ज़िंदगी होते हुए भी उसकी नहीं थी। आह, ये कैसा इंतकाम था तकदीर का उससे। मैं जा रही हूँ, उम्मीद है आप मुझसे आइंदा कोई राब्ता रखने की कोशिश नहीं करेंगे। लाइबा के लबों पर बड़ी पुरसुकून मुस्कुराहट थी, गरीन आंखों में नफ़रत की बिजलियाँ सी कूंद रही थी। इतनी नफ़रत करती हो मुझसे?
सामा के लबों पर टूटे हुए आईने जैसी मुस्कुराहट थी। उसकी ब्राउन आंखें अंगारों ही की तरह दहक उठी थी। इतनी नफरत करती हूँ मैं आपसे कि उसका तसव्वुर भी अगर आपको हो जाए तो आप जिंदगी से बेजार हो जाओगे। इतनी नफरत करती हो मुझसे? सामा के लबों पर टूटे हुए आईने जैसी मुस्कुराहट थी। उसकी ब्राउन आंखें अंगारों ही की तरह दहक उठी थी। इतनी नफरत करती हूँ मैं आपसे कि इसका तसव्वुर भी अगर आपको हो जाए तो आप जिंदगी से बेजार हो जाएंगे। लाइबा के सारे रूप आज कातिल थे। मोहब्बत तो किसी जवाब के बगैर भी हो सकती है, मगर नफरत करने के लिए किसी वजह का होना लाजमी है। क्या वजह है इतनी शदीद नफरत की? ज़रूरी नहीं हर सवाल का जवाब फौरी मिल जाए। आपके सवाल का जवाब भी आपको वक्त कभी ना कभी दे देगा। ओके। वो गेट खोलकर बाहर निकल गए और उसामा उसकी आंखों में इतनी शदीद नफरत देखने के बाद उसे रोकने की जुर्रत ही ना कर सका और अपने चकराते सर को पकड़कर वहीं बैठ गया। उसे अपने चारों तरफ वीरानियाँ रक्स करती महसूस हो रही थी। और ये थी आज की एपिसोड। होप सो कि आप लोगों को ये वाली एपिसोड पसंद आई होगी और इंशाल्लाह अब आपको इसकी अगली एपिसोड कल मिलेगी। कोशिश होगी कि टाइम पर मिल जाए, अगर ना मिली तो आप लोग इंतज़ार कर लीजिएगा क्योंकि आप लोग तो अच्छे बच्चे हो। तो बस कहना ये था कि मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को दिया करूँ, बट मेरे पास टाइम नहीं होता, गैप भी आ सकता है। वैसे अभी तक मैंने आप लोगों को गैप नहीं दिया है, तो इस चीज़ को आप लोग भी अंडरस्टैंड करें कि मैं गैप नहीं दे रही आप लोगों को। और एक दिन में 2 नॉवेल्स प्रोवाइड करना बहुत बड़ी बात है अगर आप लोग समझे तो। खैर, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।